Hello, mic check 1 2 3. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I welcome all of you to the fourth module of diabetes in collaboration with Pakistan Academy of Family Physicians and Pakistan Society of Internal Medicine. I request for the recitation of the Holy Quran. Now I request the panelists of this session to have a seat on the stage. Our first panelist is Dr. Akmal Faiz Bhatti, who is Professor of Medicine, Rashid Latif Medical and Dental College. He was also ex-DG Health Punjab and also ex-Chief of Medicine, Babda Town Hospital, Lahore. Our second panelist is Dr. Alala Rukh. She is a clinical nutritionist. And Dr. Bisma Tahir is third panelist. She is also a clinical nutritionist. Our topic of discussion is from obesity to diabetes, updates on weight reduction. Our worthy speaker is Dr. Tahir Chaudhary. He is consultant family physician and diabetologist. He has done his certification from Harvard School of Medicine, USA. Dr. Tahir is also General Secretary of Pakistan Academy of Family Physicians. I request Dr. Tahir to elaborate the topic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody present in the hall and all the worthy audience who are joining this session from home. It's a very special day, rather a bit sentimental for me, that I have to present today's topic in front of my first teacher in medical college, Dr. Akmal Faiz Bhatti. जब मैंने medical college में कदम रखा तो he was a demonstrator in anatomy और उसके बाद माशाल्लाह तरक्की करते करते ये बहुत आला ओहदों पे फाइज रहे और हम भी इनके फुट स्टेप पे पीछे चलते चलते मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम इनके बराबर आ गए, वो कभी हो नहीं सकता, लेकिन ये है कि आज के लेक्चर में अगर कोई बात आपको अच्छी लगे तो दैट इज एंटायरली एट्रीब्यूटेड टू माय ऑल द वर्दी टीचर्स like Dr. Akmal Faiz Bhatti, like Dr. Professor Mahmood Ali Malik, like Professor Javed Akram, like Professor Faisal Masood, and many more. Also Professor Ralph DeFronzo in USA, big name. Professor Rosenstock in USA, big name. So if you think that something is worth this evening, I attribute all these to my worthy teachers. And if something wrong goes, I am very much confident that my first teacher and mentor is here to save me from any bad consequences of the question answer session. And we also have two very young, energetic clinical nutritionists who have
tons and tons of experience in dealing with obesity, and they are treating their patients with obesity at different clinics in Lahore. And they are young, they are bubbling up with fresh, updated knowledge and all that. With that little note, I move on to my presentation, that is from obesity to diabetes. This is a topic which has been discussed least at any of the forums. I haven't seen it being discussed in any of the big conference or any of the local speaker or the foreign speaker program. But I tell you honestly, if we are able to understand this evening's all the procedural things, then it will really change your practice style. Another disclaimer is that this lecture is only for the purpose of academic discussion. I am not a teacher at all. I am not going to teach you something. I am going to discuss with you this fresh knowledge, which is entirely and fully evidence-based. There is nothing based on my own clinical experience. This is all based on vast data, and this is all based on huge clinical outcome trials, randomized controlled trials. So whatever we are going to discuss this evening, this is for the discussion of the academic purpose, and this is not should not be taken as a personal advice for any of you or your family member. आपने जाके आज अपनी ट्रीटमेंट रेजिमेंट चेंज नहीं करनी, आप जो ले रहे हैं वो लेते रहिएगा और इसको इंप्लीमेंट करें अपने क्लिनिक पे आहिस्ता आहिस्ता, and then if you get some results, then try to implement it on yourself or your family members. So I always wonder why there are fat doctors. If we look around, we can see that there are many of the fat doctors around with big bellies and all that. And if we ask them, why don't you take care of your belly fat? They say, यार हमारा काम है, हम हर वक्त बैठे रहते हैं. How many of you are convinced that बैठे रहने से बंदा मोटा हो जाता है? 1, 2, 3, anybody? Okay. Okay. So this is a paradox. So when I researched on it, I found two problems: lack of ability or lack of the knowledge. I have, मुझे इस बात पे कतन कोई डाउट या भाम नहीं है कि हमारे डॉक्टर्स में एबिलिटी की कमी है. So I don't agree to this notion that it's a lack of ability, but the lack of knowledge. I totally agree to that, because we have never been taught these cardiometabolic diseases in our clinical curriculum at our medical schools, and they have never been touched in terms of diet and nutrition in every medical college or medical school whatsoever. So it is not to be embarrassed, or it is not to be repent on it, because in USA, in the country like USA, only 26% of American medical schools have diet and nutrition as a curriculum in their 6,000 total contact hours. 6,000 contact hours में से just 19.5 contact hours are being taught in terms of nutrition and diet. So you can well imagine how it is possible that if we are just spending 19.5 contact hours, how come we can take off from here to take care of any metabolic disease or any sort of obesity, insulin resistance, whatsoever? So Mark Twain says, education consists mainly of what we have unlearned. So this evening we are going to learn the unlearned. जो चीज हम नहीं सीख सके, आज हम वो सीखने की कोशिश करेंगे. So this is the prevalence of obesity among US adults
age 20 to 74, and you can see over here that obesity is at rampant over the years, and it is increasing every year. This data comprises of from 1960 to 2010. And you can see that diabetes is increasing every year. What's the reason for that? We are going to discuss in a short while. But if you look at this column, there's a steep rise in obesity from 1970s to 2000. अर्ली 1970s टू 2000, इन 30 सालों में ओबेसिटी सबसे ज्यादा बढ़ी है. कुछ लोग कहते हैं कि ओबेसिटी इज इन द जीन्स. Genetics never change so rapidly. They take decades or even centuries to change. So genetics are the same, but environment has changed entirely, not only in terms of pollution and whatsoever, and they all have an impact on your insulin resistance. And at the same time, our dietary environment has changed. The diet, which was once Western or American, is now global. So this is the time period from 1976 to 2000 where the low carb craze was at peak. इस पीरियड में हमें अमेरिकन गाइडलाइंस ने ही सिखाया कि जनाब आपने फैट्स नहीं लेनी, ये आपको मोटा कर देती है. और इसका क्या नुकसान हुआ हम आगे चल के देखते हैं. अभी आपके ख्याल में ओबेसिटी जो हमारे इर्द गिर्द इतनी तेजी से बढ़ रही है, स्पेशली हमारे बच्चों में भी, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट्स द रीजन इन योर पर्सपेक्टिव? व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? फास्ट फूड नंबर वन. और अगर आप किसी बंदे, मोटे बंदे को जज करना चाहें कि ये मोटा क्यों है, तो कौन से दो पैरामीटर्स हैं जिस पे आप जज करते हैं या उसको उसकी मलामत करते हैं कि तुम मोटे क्यों हो? ये तो एक हो गया ना, ओवर ईटिंग हो गई, फास्ट फूड हो गया. दूसरी किस चीज पे आप? लैक ऑफ एक्सरसाइज. सो साला साल से ये एक फैशन है कि जी हम, जो बंदा खाता ज्यादा है और एक्सरसाइज कम करता है वो मोटा हो जाता है. दिस इज द फैशन. अभी हम देखेंगे कि दिस इज नॉट द केस. अगर एक्सरसाइज एंड डाइट इज द प्रॉब्लम, देन व्हाट अबाउट दिस? There is ample data now that we are seeing obesity even in a 6-month-old kid, or far before that in vitro. Sorry, intra-abdominally, when the patient is in vivo, जब fetus है बच्चा, वहां भी उसकी भी वजह हम देखेंगे. So anything which explains obesity on the basis of ample diet and less exercise must explain this to me. So this evening we have gathered here and I will take you to a journey where we are going to find some pertinent answers to very relevant questions. And if we are able to answer these questions in a relevant way, everything would be all right. Because if we don't answer these questions which are coming up in the next slide, if we don't answer these questions rightly, everything which we do afterwards would be wrong. Our diagnosis would be wrong, our treatment would be wrong, and all the outcomes would be wrong. And these are the three questions which I have selected this evening, and we will try to find out the answers to these three pertinent questions. Number one is, are all the obese people sick? क्या तमाम जो मोटे लोग हैं क्या वो बीमार होते हैं क्या? Is it a बीमारी or disease something? Question number two, why we get fat? हम मोटे आखिर हो क्यों जाते हैं? And then we will go for the third and the final question, and we will try to seek a solution for the problem. Fair enough? So let's move to
Question number 1. Are all obese patients sick? Just concentrate on this. This is the exclusive view of obesity and metabolic dysfunction. There are 240 million adults in USA. Out of these 250 million adults, 72 million, red box, are obese, and it makes about 30% of the obese patients. Out of these 30% obese patients, 80% are obese and sick, and 20% are normal. So out of these 30% obese patients, 80% of them, 80% of these 30% are metabolically ill along with obesity. Now, at the same time, we have 70% normal weight people, and out of these 70% non-obese normal weight patients, 40% are metabolically ill. तो जो नॉर्मल वेट है वो 40% they are metabolically ill. So if you look at the bottom of this panel, 67 million normal weight metabolically sick patients, they are telling to 57 million obese patients that you are the problem. So normal weight metabolically sick, normal weight metabolically sick outnumber the obese metabolically sick patients. So obesity as per se is not a problem. This is the marker of some problem, and we will discuss in a short while. Any radiologist in the house? कोई radiologist है जो MRI को पढ़ना जानता हो? These are two MRIs from two different patients. Which one is the more sick, A or B? A or B? How many say A? 1, 2. So all of you are agreed that B is. नहीं यार, हाथ किसी एक तरफ तो होना, न्यूट्रल नहीं रहना. न्यूट्रल पता ना कौन रहता है? A or B? A. If you look at A, you can very clearly, मेरे पास यार वो होगा, वो मेरे पास पॉइंटर होगा ग्रीन या कोई भी पॉइंटर दे दीजिए. ओके जी. किस केस में? दोनों में से किस में? सर उस तरफ नहीं आना, मुझे सिर्फ इसका बताएं. इसमें एब्डोमिनल ओबेसिटी किसमें है, विसरल किसमें है, वो बताइए. दैट्स गुड. बी वाला देखे सारा वाइट हुआ पड़ा अंदर से. ठीक है, बी वाला सारा वाइट है और वहां पे सबक्यूटेनियस फैट नीचे वाले हिस्से में आपको कम नजर आ रही है, जबकि ऊपर वाले हिस्से में ये साइडों पे जो व्हाइट बड़े पैचेस हैं, दिस इज द सबक्यूटेनियस फैट. और वहां पे अगर आप देखें तो विसरा सारे क्लियर है, ऊपर ब्लैक, ऊपर वाले सारे विसराज आपको क्लियर नजर आ रहे हैं. गॉट माय पॉइंट? सो नीचे वाला जो बी है, दैट इज मोर सिक despite the fact it is a thin lean, and we have now a very specific term for that, that is called toffee. That is thin on the outside and fat on the inside. तो ये टॉफी पेशेंट्स हैं जो कि देखने में thin lean है, but they are fat on inside. So B is the more sicker. So up till now we are convinced that obesity is not the problem, but metabolic syndrome is, because it is metabolic syndrome. This is metabolic syndrome which accounts for where all the money goes. 75% of the healthcare cost goes to the metabolically active diseases, and they are 8 in number. These are
diabetes, hypertension, dyslipidemia, cardiovascular disease, non-alcoholic fatty liver disease, cancer, PCOS, and dementia. These are the 8 metabolic diseases which chew up 75% of the healthcare budget all across the world. 75% हेल्थ केयर बजट इन बीमारियों के ऊपर लगता है और यही 75% हेल्थ केयर बजट इन 8 बीमारियों पर लगता है और इसके लिए सिर्फ 19.5 क्रेडिट आवर्स पढ़ाया जाता है और इनमें से आपको मैं बता दूं none of these problems are the actual diseases. These are the symptoms of the diseases. Hypertension is not a disease. This is the symptom of the disease, and same is the case with all of other things. These are the manifestation of mitochondrial dysfunction. And no drug goes to the mitochondria. All of these problems, if you want to get rid of these, the root cause of these problems, then you would have to appreciate that no drug reaches mitochondria. We are just treating over the decades the symptoms of the disease, not the actual disease, because all of these diseases are foodable, not druggable. And I will prove it in a short while. So, is obesity the problem? Not. Obesity is increasing worldwide by 2.78% per year, while diabetes is increasing worldwide by 4.07 per year. So if diabetes is a subset of obesity, then how it is possible that diabetes is increasing rampantly while obesity is not? अगर दोनों का तकाबुल किया जाए, again 25% increase in the obese, diabetes, 25% increase in diabetes in obese patient and 25% increase in the normal weight patient. So कुछ तो ऐसी चीज है जो सिर्फ obesity से related नहीं है और हम देखेंगे कि वो किससे related है. वो जिस चीज से related है, you can see over here, you can fix the health care जिसकी अभी हमने बात की. You can't fix the health care until you fix health. You can't fix the health until you fix the diet, and you can't fix the diet until you know what the hell is wrong in our diet. And we will figure out what the hell is wrong in our diets this evening. पहले क्वेश्चन से बात वाज़ेह हो गई. तो obesity as per se बीमारी नहीं है, इसके साथ और बहुत सारे मसाइल हैं. Now the question number 2, why we get fat? हम मोटे क्यों होते हैं? This is the secular trend of total number of calories in teen boys, 275 calories. We are using 275 calories more over the year in teen boys from 1989 to 1995. ये 95 तक का डाटा है. उसके बाद अब इससे बात कहीं आगे जा चुकी है. Although this is an old slide, but that will give you an overall picture of the trend of caloric increment in our diets. तो पहली तो बात यह है कि हमारे जितने बच्चे हैं वो 275 कैलोरीज पहले से ज्यादा यूज कर रहे हैं नॉर्मल डाइट से. Then do these calories come from the fat? No. Only 5 gram increase has been seen over the year, and that renders only 45 calories. I am comfortable with that, no problem. That's a very good amount of fat. So that is almost, balanced. ये ज्यादा नहीं हुई कोई. और उसकी वजह ये थी कि जो एक लो फैट क्रेज 1976 में आया और जिसने हमें ये बताया कि जी ये आपका लिए बड़ा खराब है, और उसमें कार्डियोलॉजिस्ट सर फहरिस्त है. बड़ी माजरत के साथ अगर यहाँ पे कोई कार्डियोलॉजिस्ट है तो 1976-77 के अंदर, तो ये भी इसकी हिस्ट्री है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या ऐसा हुआ कि ये भी नॉन टेक्निकल बंदा था एंसल कीज नाम का, जिसको सदर निक्सन ने पॉइंट किया कि देखो कि यार मुल्क के अंदर ओबेसिटी और हार्ट डिजीज क्यों बढ़ रही है. उसने पुराना रिकॉर्ड खंगाला और कहा कि ये तो फैट खाने से हो रहा है, और उस दिन से फैट की जो राशनिंग थी वो 30%
जो थी उससे कम करके 20% कर दी गई। और उसका नतीजा क्या हुआ? और ये भी मैं बता दूं कि डॉक्टर एंसल कीज वाज अ ऑफिसर फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो अमेरिका में भी ब्लंडर्स होते हैं। जब उसने 1976 में लो फैट का क्रेज दिया हमें, तो ये हुआ। जब हमने कैलोरीज कट की फैट से, तो ओबेसिटी प्रेवलेंस अगर आप देखें तो 1976 के बाद नीचे आने के बजाय और ऊपर जाना शुरू हो गई। रीजन क्या थी? व्हेन वी कट द फैट, सही साहब, व्हेन वी कट द फैट फ्रॉम आवर डाइट, वी इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स आप ज्यादा खा नहीं सकते। कितना चिकन खा लेंगे आप? आज उन्होंने पीसीस रखे हुए थे, एक बंदा एक से ज्यादा नहीं खा सकता। 6 गिलास कोक के पीना बहुत आसान है। स्टिंग 2 दिन में पीना बहुत आसान है। मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? तो यहां से क्या हुआ कि ओबेसिटी मजीद बढ़ी। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो ओबेसिटी बढ़ी, हमने फैट तो कट कर दिया था, कैलोरीज इंक्रीज हुई, तो कैलोरीज कहां से आई? ऑल द कैलोरीज केम फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। So 57 ग्राम इंक्रीज विद 228 कैलोरीज इन टीन बॉयज। तो सारी जो कैलोरीज बढ़ी हैं वो बढ़ी हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ। और कार्बोहाइड्रेट भी कौन से? फ्रॉम बेवरेज इनटेक, कोक, पेप्सी, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, स्टिंग, रेड बुल। 41% of the soft drinks and 35% increase from the food drinks. ये तो बात हो गई आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स की। आगे चलते हैं। द पिक्चर ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल बर्गर विच वाज मार्केटेड वे बैक इन 1960 एंड इट वाज जस्ट 1 ounces of the size, and this was launched in 1957 and it contained only 210 कैलोरीज। देन इसका साइज बढ़ा और ये 6 ounce का हो गया सेंटर में। 210 कैलोरीज से इसका साइज बन गया 618 कैलोरीज। और ये जो एक्सट्रीम राइट पे थिक बर्गर है, ये 1420 कैलोरीज देता है। ये हार्डीज का बर्गर। और हार्डीज ने अब इससे एक स्टेप आगे जाके इस बर्गर को मजीद बड़ा कर दिया है और अब 2000 कैलोरीज का बर्गर भी उनके यहां मौजूद है, जो कि शायद पूरे दिन की आपकी, और जो कोक है जो वो आपको अपसाइज करके देते हैं वो इसके अलावा है। ठीक है जी। उसके बाद इस तरह की डील्स, फ्री डबलिशियस। क्या लिखा हुआ है? फ्री डबलिशियस विद द परचेज ऑफ अ 30 ounce ड्रिंक। आप सिर्फ 30 ounce का एक ड्रिंक खरीद लें तो आपको बर्गर फ्री दे देंगे साथ। और इसमें कल्प्रेट, इन दोनों में से आपके ख्याल में ओबेसिटी के लिए डेट्रीमेंटल क्या है, बर्गर या पेप्सी? पेप्सी, दैट इज मोर डेंजरस। ओके। फूड कंपनीज ने कॉन्स्पिरेसी की पूरी दुनिया में, और कोको कोला उसमें सरफहरिस्त था। ये जो पहली बोतल जिसके ऊपर आपको ब्लू निशान नजर आ रहा है, दैट इज 1915 की बोतल है ये, जिसमें 6 ounce के बराबर शुगर थी। और अगर एक बंदा एक बोतल रोजाना पिए तो 1 साल में 8 पाउंड फैट उसकी बॉडी पे आएगी। नीचे पढ़ ले। 1915 में इसका साइज था 6.5 ounces। फिर 1955 में वर्ल्ड वार खत्म हुई तो राशनिंग खत्म हो गई। जो राशन उन्होंने अपनी शुगर और अनाज की राशनिंग की हुई थी, जब खत्म हुई, एम्पल शुगर हमें मिली, तो इसका साइज बढ़ा दिया गया और इसको 10 ounce का कर दिया गया 1955 में, जिससे अगर आप रोज की एक बोतल पीते थे तो 13 पाउंड फैट आपकी बॉडी पे आती थी साल में। फिर 1960 में ये केन इंट्रोड्यूस हुआ, कोको कोला केन। ये 12 ounce का था। अगर आप रोज का एक कैन यूज करें तो 16 पाउंड पर ईयर आपकी बॉडी पे फैट आती है। फिर 1992 आया तो ये पेट बॉटल का रिवाज आया। अब ये पेट बॉटल जो थी, इसके अंदर 20 ounces थे। पहली बोतल के मुकाबले में ये डबल थी, यानी पहली बोतल जो 1955 में 10 ounce की थी तो ये 20 ounce की थी। यानी ये पहली बोतल सिंगल सर्विंग थी, तो अब आपकी सिंगल सर्विंग में डबल कोको कोला आ गई।
नतीजा 26 पाउंड पर ईयर फैट अराउंड द बॉडी। फिर 1988 में आपके पास ये टेट्रा पैक आया, साइज हो गया 44 ऑunce, और अगर आप रोज का एक ये पिए तो 57 पाउंड पर ईयर फैट आपकी बॉडी पे आ जाती है। और जब भी आप किसी भी फास्ट फूड चेन पे जाते हैं तो आपसे ये कहते हैं सर मैं इसको अपसाइज कर दूं, यानी वो इसका साइज को और बड़ा कर देते हैं। अब उनके पास इससे बड़े ग्लासेस आ गए, तो वो पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक अपसाइज नहीं हो रहा, वो मौत अपसाइज हो रही है। ठीक है, सो व्हाई आई कॉल इट अ कोको कोला कॉन्स्पिरेसी? सो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज कंटेन्ड इन द कोक? कोक में क्या होता है? एक मिनट, वेरी गुड जी, थैंक यू सर। कैफीन, फिर जी फ्रुक्टोज या शुगर है, चलो उसको हम बाद में कहते हैं। उसके अलावा क्या है? नहीं, कोकेन अब नहीं है, वो रंधावा साहब सही कह रहे हैं। जब कोको कोला शुरू में मार्केट हुई थी तो इसके अंदर कोकेन और अल्कोहल थी, और ये सिर्फ शराब की दुकानों पे अवेलेबल थी। जब इन्होंने एफडीए को अप्रोच किया कि हम इसको मार्केट करना चाहते हैं, उन्होंने कहा ये दोनों चीजें निकालोगे तो तब इंटरस्टेट बेच सकोगे। तो कोका कोला, कोका कोकेन से है, तो जब ये शुरू हुई थी तो कोकेन थी इसमें, अब नहीं है। आगे चलते हैं जी। कैफीन, और इसके अंदर काफी सारा सॉल्ट। कितना सॉल्ट? इक्वल टू अ मीडियम साइज पिज्जा। 55 मिलीग्राम ऑफ सोडियम है। ठीक है जी। और कैफीन क्या करती है बॉडी में? व्हाट डज इट डू? इट इज अ stimulant and diuretic. Thank you very much. What the diuretic do? They make you pee out the free fluid. Fluid loss करती हैं सर, सुन ली। डायूरेसिस के अंदर आपका फ्री वाटर लॉस होता है, और सॉल्ट आप ले रहे हैं 55 मिलीग्राम, और शुगर इसमें ढेर सारी इसलिए मिलाई जाती है कि अगर आप ढेर सारी शुगर नहीं मिलाएंगे तो सॉल्ट इसमें इतना ज्यादा है कि आप इसको पी नहीं सकेंगे। सो इन ऑर्डर टू मास्क द टेस्ट ऑफ सॉल्ट, दे हैव एडेड अ वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर, बट नॉट शुगर, fructose, high fructose, which is detrimental for your health of the liver. ठीक है? So when you pee out free fluid and take extra amount of salt, what do you feel then? You feel more thirstier. And when you feel more thirstier, फिर क्या होता है? फिर ये होता है। आपका बच्चा कोक उसको दिन में 10 बोतलें पिला दें, उसको 1 चम्मच कैलपोल 6+ उसके अलग से नहीं उतरता, ब्रूफिन नहीं उतरता, बिकॉज कोको कोला इज स्टिल एडिक्टिव because of the fat, because of the fructose. Both alcohol and fructose, they share one common thing, that they cause addiction in 20% of the users. Both. ठीक है? तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? फ्रुक्टोज किस में होता है? पहले तो आपके फ्रूट्स में होता है, ठीक है जी। उसके अलावा जितने आपके प्रोसेस फूड हैं उनके अंदर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल है। जितने आपके ड्रिंक्स हैं, जितने आपके सॉसेज हैं, जितने आपके केचप्स हैं, जितने आपके मायोनीज हैं, जिस चीज के अंदर मिठास है, क्योंकि ये सस्ता होता है, इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। इसको हम डिस्कस करेंगे अभी, क्यों हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल ज्यादा है। ये इन चीजों में ज्यादा है। जो चीज प्रोसेस फूड में मीठी आ रही है उसके अंदर फ्रुक्टोज ही है, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? व्हेन यू टेक 1 can of कोको कोला and when you take 1 drink of beer, both contain 150 calories each. Out of these, from different metabolic pathways, 90 calories reach the liver and 92 calories reach the liver from beer side or alcohol side, and 90 calories from the coke side, equal. After that, liver को इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये बियर से आई है
या कोक से आई है, कहां से आई है? द मेटाबॉलिक पाथवेज आर द सेम. Fructose and the sugar is metabolized in the liver through the same pathway as alcohol. दोनों में कतन कोई फर्क नहीं होगा. लिवर को नहीं इससे गर्ज है. और क्या होता है लिवर के लिए? देयर इज, उसके पास हजारों काम और है करने के. वो इस सारी फ्रुक्टोज को कन्वर्ट कर देगा फैट में बाय द प्रोसेस कॉल्ड de novo lipogenesis. De novo means inside, de novo means new, lipogenesis, de novo lipogenesis. और जब लिवर में बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो जाता है तो लिवर ट्राइज टू गेट रिड ऑफ दिस फैट. इट पैकेजेस इनटू VLDL, वेरी लो डेंसिटी lipoproteins, and then it exports it out in the form of triglycerides. तो जब भी आपका पेशेंट लिपिड पैनल लेके और ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं, दैट इज द साइन ऑफ हिपैटोटॉक्सिसिटी. दैट इज द साइन ऑफ एक्सट्रीम इंसुलिन रेजिस्टेंस एट द लेवल ऑफ द लिवर. और यहां से तमाम मेटाबॉलिक डिजीजेस का आगाज होता है. ठीक है. और इसका इलाज फिनोफाइब्रेट्स नहीं है, इसका इलाज जेमफिब्रोजिल नहीं है. इसका इलाज जस्ट टू कट द शुगर इन योर डाइट एंड सी द मिरेकल्स. यही वजह है कि आज तक भी जो मैंने शुरू में बात की, वी आर जस्ट ट्रीटिंग द सिम्टम ऑफ द डिजीजेस. डिस्लिपिडीमिया इज नॉट अ डिजीज, इट इज द सिम्टम ऑफ de novo lipogenesis. This is the symptom of mitochondrial dysfunction. आगे चलते हैं. तो जब बियर पीने वालों की, व्हाट इज दिस, इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं? शराब पीने वालों के जब मोटे पेट है, इसके लिए एक स्पेसिफिक नेम है. क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बियर बैली. मेटाबॉलिक हल्कों में इसको बियर बैली कहते हैं. सो इफ दिस इज अ बियर बैली, दिस इज द सोडा बैली. ये बच्चों का हाल हो रहा है. देयर इज नो डिफरेंस व्हाटसोएवर. आप अपने बच्चे को कभी भी अल्कोहल नहीं देंगे, लेकिन प्यार में दिन में 6 दफा आप उसको कोक जरूर पिलाएंगे. जब वो जिद करेगा पिलाएंगे. आप उसको स्टिंग भी देंगे. आपको पता भी नहीं होगा, आप सोए होंगे रात को, फूड पांडा वाला आके उनको सर्व कर रहा होगा. वो आप बेल भी नहीं देते. ठीक है ना जी. फोन पे बता देते हैं कि मैं आ गया हूं नीचे. बच्चे चुप करके जाते हैं, उठा के ले आते. सो दिस इज द रिजल्ट. होता क्या? फिर ये होता है फ्रुक्टोज इंक्रीजेस de novo lipogenesis इन नॉर्मल एडल्ट्स. और नीचे ग्लूकोज है, और ये जो ऊपर सीधी लाइन जा रही है ये फ्रुक्टोज की है. वजह क्या है? ग्लूकोज इज बीइंग यूज्ड बाय एवरी सेल ऑफ योर बॉडी फॉर द एनर्जी. दिस इज द एनर्जी ऑफ लाइफ. फ्रुक्टोज इज अ माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिन. दिस इज अ पॉइजन फॉर यू. यू कैन सी कि सिर्फ फ्रुक्टोज के साथ आपका डिनोवो लाइपोजेनेसिस कहां जा रहा है, और इसके साथ ही हाइपरटेंशन आनी है, इसके साथ डिस्लिपिडीमिया, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. हमारे बच्चों को बड़ों की बीमारियां हो रही हैं. 1980 से पहले, अकमल भट्टी साहब यहां मौजूद हैं, 1980 से पहले अगर किसी डॉक्टर के पास फैटी लिवर डिजीज का पेशेंट आता था तो दिस वाज टेकन फॉर ग्रांटेड दैट ही इज अल्कोहलिक. आज आपके बच्चों को अल्कोहल की बीमारियां हो रही हैं. आप अपने बच्चों का, नाउ 45% of the adults in USA have fatty liver disease, and 25% of the children below the age of 18 they have fatty liver disease. Our children are getting the diseases of adults, diseases of aging. आपने कभी आज से 30 साल पहले किसी बच्चे को टाइप 2 डायबिटीज होते देखी थी? Now 1 out of every 3 newly diagnosed diabetic children, 1 is type 2. 3 में से 1 को type 2 है. So you can now appreciate the relevance of this topic to the rest of the course. आज आपको ये बातें समझ आएंगी तो तब आपको पता चलेगा कि इंसुलिन का यूज क्या है, ओरल्स का यूज क्या है, डिस्लिपिडीमिया में हमने क्या करना है. तो दिस is a foundation on which I claim that whole of this course is based. आज का अगर आपने ये टॉपिक समझ में आ गया तो अगले 20 लेक्चर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे. एग्रीड?
or not? So up till now, end पे लेते हैं questions. Up till now, I apologize that I have given you very bad news. I have got you in trouble. Now it's time to get you out of this trouble. अब हम इससे निकालेंगे कैसे आपको? इसका सॉल्यूशन भी तो कोई होगा ना. और जिस तरह हर एक पिक्चर में सारी ट्रेजेडी के बाद हैप्पी एंडिंग होती है, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द हैप्पी एंडिंग ऑफ द पिक्चर. कि ये सारा कुछ कितना आसान है. ठीक है जी, चलें आगे. थका तो नहीं कोई? राव साहब ठीक जा रहे हैं? चल, थैंक यू. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? देयर आर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच वी यूज. ठीक है जी, अगले 15 मिनट में इंशाल्लाह आई विल बाइंड इट. There are 3 macronutrients. Out of these, only carbohydrates and fats are being used as energy in the body. Proteins are barely the building blocks. They give structure to our body. How I move, how I stand. अगर प्रोटीन्स ना हो तो मैं यहां खड़ा नहीं हो सकूंगा, मैं एक मीनार की तरह नीचे गिर जाऊंगा. So these are the building blocks. Proteins are the building blocks. Only fats and carbs are used for the purpose of fuel in our body. So for the time being, let's take it away. Protein की अभी हम बात नहीं करते. So let's see how our body uses 2 macronutrients out of 3. So which substrate, carbohydrate, fats, what we are going to use, this is entirely based on a hormone called insulin. Insulin ये फैसला करती है कि कार्बोहाइड्रेट को यूज करना है फ्यूल के लिए या फैट्स को यूज करना है. ठीक है? If insulin is so important, let's see what is the effect of insulin on these substrates. So when we are using carbohydrates, insulin goes up. क्योंकि उस कार्बोहाइड्रेट को कहीं ठिकाने भी तो लगाना है ना. सो व्हेन वी आर यूजिंग कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन गोज अप. और ये इस इंसुलिन जो है वो इसको धकेलती है तमाम कार्बोहाइड्रेट्स को इनसाइड द सेल्स. ठीक है जी, यहां तक तो सबको पता है इस बात का. ओके, व्हेन वी यूज फैट्स देयर इज नो इंसुलिन इफेक्ट. फैट को इंसुलिन नहीं चाहिए, सो इंसुलिन की स्पाइक आएगी नहीं when you are using fat. So when we are using fat, carbohydrate as an energy, insulin goes up, and when we are using fats, insulin goes down. तो ये बात एक अभी अपने जहन में बिठा लेंगे तो आगे काम बहुत आसान हो जाएगा. कार्बोहाइड्रेट के साथ इंसुलिन ने ऊपर जाना है. This is the normal response of the body because insulin is the storage hormone. Everything which comes in the body is being stored inside the cells through the help of insulin. Insulin is a storage hormone. Insulin की मौजूदगी में either intrinsic or extrinsic, ये भूल जाएंगे आपका पेशेंट पतला होगा. एक तरफ हमने पेशेंट को 100 यूनिट्स पर डे इंसुलिन पे डाला होता है और हर दफा उसको झिड़क रहे होते हैं, या तुम्हारा वेट तो नीचे नहीं आ रहा, और उसको मलाइन भी कर रहे होते हैं कि तुम वजन नहीं कम कर रहे अपना, तुम खाते ज्यादा हो, तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे. हम में से कितने लोग हैं कि जिसको पता है कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है. इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, forget forever that you are going to lose the weight, either intrinsic or extrinsic. अब इस बात की कोई बहस नहीं है कि ग्लूकोज कैसे कंट्रोल होता है. इंसुलिन चाहे बाहर से आए या जिस्म के अंदर से आए, being a storage hormone, this is the duty of insulin to store everything inside the cell. So switching between these two fuel sources, either carbohydrate, fats, is technically called metabolic flexibility. This is just like a hybrid engine of a car. आप दोनों एनर्जीज यूज कर सकते हैं. ठीक है जी. पेट्रोल यूज करेंगे तो वो महंगा पड़ेगा,
इसी तरह फैट्स को ज्यादा यूज करेंगे तो आपकी हेल्थ पे महंगा पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल यूज करेंगे थोड़ी देर के लिए वो चलती है सिर्फ, लेकिन उसके साथ आपका नुकसान कोई नहीं, आपके ऊपर खर्च कोई नहीं आ रहा। सो मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन स्विच आइदर ऑफ द फ्यूल सोर्सेस। नाउ अब होता क्या है, अब हमें ये बात समझ आ गई कि कार्ब्स यूज करेंगे इंसुलिन ऊपर जाएगी, फैट्स यूज करेंगे इंसुलिन नीचे आएगी, क्योंकि इंसुलिन की जरूरत नहीं है। अब होता क्या है, गौर कीजिएगा, सब सब उस तरफ आपने रहना है। प्लीज फिक्स ऑन द स्लाइड्स। जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो पहला हमारा नाश्ता क्या होता है, नान चने, हलवा पूड़ी, और जो ज्यादा साफ टाइप लोग हैं डबल रोटी, ब्राउन डबल रोटी। साथ क्या होता है, या सीरियल, बड़े शौकीन है लोग दलिया खाने के, मीठी चाय का कप। यही है ना मेजॉरिटी, या सुबह के वक्त जो आम हमारा एक स्टेपल फूड है, यही है ना सिर्फ। सो आर कार्ब यूज has increased at least 25 folds, not the percentage, 25 folds over the year. तो दिन चढ़ते ही हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो आगाज है वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से होता है। अब क्या हुआ, this is the normal eating pattern which is being followed. Breakfast, snack, lunch, snack, supper, snack, और उसके बाद अल्टीमेट स्नैकिंग आफ्टर सपर, जब तक कि हम सो नहीं जाते। सो ये हमारा नॉर्मल पैटर्न है। हम इंसुलिन के पांव जमीन पे लगने ही नहीं दे रहे। सुबह नाश्ता किया, इंसुलिन रिमेन्स एलिवेटेड फॉर 4 आवर्स। क्लिनिक पहुंचे, ऑफिस पहुंचे, नाश्ता करके, तो साथ ही साथ के लिए चाय आ गई। 2 घंटे बाद इंसुलिन अभी नीचे आने का सोच रही थी, चाय आ गई। चाय पी के हटे तो लंच का टाइम आ गया। लंच के बाद काम काज करके वापस आए तो बेगम ने आगे फिर चाय और साथ समोसे और कुकीज रखी हुई है, वो खा के फारूक हो गए तो हमारा लंच आ गया। लंच के बाद बच्चे सारे इकट्ठे हो गए, अकेडमियों से वापस आ गए, जो काम करने वाले वापस आ गए, सोशल टाइम शुरू हो गया। अब हमारी पिज्जा डीलें शुरू हो गई। हम इंसुलिन को नीचे कब आने दे रहे हैं? सो इंसुलिन रिमेन्स एलिवेटेड ऑल द टाइम्स, और क्या होता है, मेटाबॉलिक इनफ्लेक्सिबिलिटी। हम अपनी बॉडी को कभी भी फैट्स के ऊपर स्विच ही नहीं होने दे रहे। ऑलवेज यूजिंग कार्ब्स, और कार्ब्स विद फैट, नॉट फैट अलोन। नतीजा, कार्टून पे नजर रखें, आप इसलिए मोटे हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू दैट मेटाबॉलिक इनफ्लेक्सिबिलिटी, नॉट यूजिंग द फैट as the sole staple food, we are using either carbohydrates or carbohydrates mixed with fat, which is the rich feast. जब आप कार्बोहाइड्रेट को फैट से मिला लेते हैं तो आपके जो फैट सेल्स हैं उस दिन उनकी समझ नहीं, ईद हो जाती है, दावत हो जाती है, वो ग्रो डबल रेट पे करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ फैट खाएंगे, सिर्फ फैट खाएंगे, आप मोटे नहीं होंगे। आज से इस कॉन्सेप्ट को दफन कर दीजिए कि फैट खाने से, मक्खन खाने से, घी खाने से वजन बढ़ता है। वजन ने तभी बढ़ना है जब इंसुलिन ने ऊपर आना है। जब इंसुलिन ऊपर नहीं आएगी आपका वजन नहीं बढ़ेगा। सो इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ थिन एंड लीन लाइक दैट, प्लीज कंसंट्रेट ऑन फैट्स एंड प्रोटीन्स एज वेल रादर देन द इंसुलिन। ओके, ये आपने, ये डाइट चार्ट है जो हमारे ज्यादातर क्लिनिक्स के ऊपर छपा हुआ पड़ा हुआ है। यहां गलती ये की गई है, ये सबसे पहले हमें सर्वेयर ने प्रोवाइड किया था, उसके बाद आज भी हर क्लिनिक पे यही चार्ट मौजूद है। जो भी मैंने 6 खानों की बात की, हम तो डॉक्टर मरीज को 6 खाने खिला रहे हैं। देख लें इसके अंदर 3 बड़े खाने हैं, 3 छोटे खाने हैं। वी आर वायलेटिंग, दैट्स ऑब्सलीट नाउ। किसी, आज भी एक बहुत बड़े एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का मैं नाम नहीं लूंगा, उनका पेशेंट मैं अभी क्लिनिक पे देख के आ रहा हूं, उनको यही चार्ट दिया गया। और ये चार्ट मैंने ऊपर से नाम हटा दिया है, एक बहुत ही रिनाउंड डायबिटिक सेंटर का है, जो कि पूरे पाकिस्तान में जिसकी फ्रेंचाइजीज मौजूद है। ये आज भी उनके क्लिनिक पे यही पेशेंट को दिया जा रहा है। 1000 कैलोरीज हमने कर दी है जी, कम कर दी है, लेकिन मील 6 ही रखे हैं। अभी हम देखेंगे कि कैलोरीज कम करने से कुछ भी नहीं होता, जब तक आप नंबर ऑफ मील्स और कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट वुड नॉट ब्रिंग इट डाउन। कैलोरीज, कटिंग द कैलोरीज इज स्टूपिड। इसको दफन कर दे इस कॉन्सेप्ट को। कैलोरीज कट करने से वजन नहीं कम होता, वजन कम होता है
आपके कार्बोहाइड्रेट कम करने से और फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स कम करने से। अभी हम देखेंगे। सो दिस इज अनदर एग्जांपल। ये उस बच्चे की तस्वीर है जिसको दुनिया में पहली दफा इंसुलिन का टीका लगा था। बाईं तरफ देख ले, हड्डियों का ढांचा था, आप उसकी रिब्स गिन सकते हैं। और जब इंसुलिन लगी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई जो राइट साइड पे। ये बड़ी मशहूर स्लाइड है जो इंसुलिन वाले अपनी प्रेजेंटेशंस में दिखाते हैं। तो आप ये देख लें, दिस इज अनदर एग्जांपल कि इंसुलिन के साथ बंदा मोटा होता है। यू आर कंपाइलिंग फैट ऑन योर बॉडीज। अब ये आपने ऑयल टैंकर तो देखा ही होगा, सड़कों पे सब देखते हैं। इसके अंदर दो फ्यूल सोर्सेज हैं। एक ये छोटा फ्यूल सोर्स है, इसको आप, और ये इसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा फ्यूल सोर्स है। जो सबसे छोटा फ्यूल सोर्स है इसको आप कार्बोहाइड्रेट्स कह लें, विच आर वेरी स्मॉल। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं थोड़ी सी मिकदार बॉडी में जाके ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो सारी जो एक्स्ट्रा है वो चेंज हो गई फैट में। हम अपनी बेलीज के इर्द गिर्द, पेट के ऊपर, बट्स के इर्द गिर्द, हिप्स के इर्द गिर्द ये बड़े वाला जो है फ्यूल सोर्स उसको उठाए फिरते हैं जो फैट की शक्ल में है, बट वी नेवर यूज इट। क्योंकि इधर से हम कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, इंसुलिन नीचे आए तो हम फैट को यूज करें ना। जो हमारे इर्द गिर्द ये बॉडी फैट है, ये समझ लें हमारे जिस्म के साथ बर्गर्स बंधे हुए हैं। ये हमारे जिस्म के साथ रोटियां बंधी हुई हैं। आपने कभी इस पर गौर नहीं किया। आप इसको यूज करें, ये बहुत ज्यादा मिकदार में है, 100 टाइम्स एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी पे फैट है, 100 गुना ज्यादा। हम इसको यूज नहीं करते। यूज ये तब होगी जब हम फैट में से अपना फोकस हटाएंगे, सॉरी फैट पे अपना फोकस लेके जाएंगे और कार्बोहाइड्रेट को जो है उसको कट करेंगे। आगे चलते हैं जी। ये भी आपने तस्वीर देखी होगी। इस तरह से ठोस ठोस के इंसुलिन आपके अंदर ग्लूकोज भर रही होती है, जबकि ऑलरेडी द सेल इज फुल। कंपार्टमेंट को देखें वो भर चुका हुआ है, लेकिन इंसुलिन धक्का लगा के ग्लूकोज को लेके जा रही है। जब ये ट्रेन अगले स्टेशन पे जाएगी तो इतने ही लोग वहां मौजूद होंगे। हमें ये जो इंसुलिन वाले एहलकार हैं इनको मजीद बढ़ाना पड़ेगा ज्यादा लोगों को ठोसने के लिए, क्योंकि ये पहले ही ठुसी पड़ी है। 2 बंदों का काम नहीं फिर होगा, फिर और बंदे बढ़ाने पड़ेंगे। इंसुलिन को बढ़ाना पड़ेगा, बंदों को बढ़ाना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड हाइपर इंसुलिनीमिया। इस तरह से ठोस ठोस के हम डाल रहे होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन की मौजूदगी में होता है। इंसुलिन को हटा लें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। इंसुलिन आगे नहीं बढ़नी चाहिए। अब मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मैंने क्यों ये कहा कैलोरीज कम करने से आपकी जो है फायदा नहीं होता। जब आप कैलोरीज कट करते हैं तो आपकी बॉडी उधर से अपनी बेसल मेटाबॉलिक रेट को कम कर देती है। अगर आप 2000 कैलोरीज डेली लेते हैं, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा कि इसको 1500 कैलोरीज कर दो, तुम पतली हो जाओगी। कभी पतले नहीं होगे। जब आप 2000 कैलोरीज से 1500 कैलोरीज करेंगे तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बॉडी अपना स्लो करके 1500 कैलोरी ही अब यूज करेगी। वो कैसे मुमकिन है कि मेरे पर्स में तो 1500 रुपए हो तो मैं 2000 कैसे खर्च कर दूंगा। तो जब मैंने 2000 से कम करके 1500 कैलोरीज की हैं, तो अब मैं खर्च 2000 कैलोरीज नहीं कर सकूंगा। 1500 के अगेंस्ट 1500 ही खर्च हो सकता है। तो उधर से 500 कैलोरीज नीचे चली जाएंगी और आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगी। नेट फैट लॉस वुड बी 0। आगे फॉर द सेक ऑफ टाइम, अगर यही बात समझ आ गई है तो आप इसको समझ लें। रिमेंबर, कटिंग द कैलोरीज नेवर वर्क्स बट फास्टिंग ऑलवेज। जब आप रोजा रखते हैं, खा नहीं रही होती, इंसुलिन ऊपर जाती नहीं। जब इंसुलिन ऊपर नहीं जाती तो आप बेशक आजादी से अफ्तारी के बाद खाएं, अगले 3 या 4 घंटे की विंडो में जो दिल करता खाएं। कोई जरूरत नहीं। इफ यू आर नॉट डायबिटिक, आपका वजन नीचे आना शुरू हो जाए। और ये फास्टिंग हम सारा साल कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कर सकते हैं। वो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आपको जवाब देंगी उसका कैसे करते हैं। सो काउंटिंग द कैलोरीज इज स्टूपिड आइडिया। नेवर काउंट कैलोरीज, ऑलवेज फोकस ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स, कट द कार्बोहाइड्रेट्स। सो फिर एक और हम लोगों को बताते हैं जी, खूब एक्सरसाइज करो। ये मंजन बड़ा बिकता है, फलां जिम पे चले जाओ जी, वेट लॉस हो जाएगा। Exercise has lot of benefits, but weight loss is not one of them. एक्सरसाइज से वेट लॉस नहीं होता, कार्ब कट करने से होता है। जितनी मर्जी ट्रेडमिल पे दौड़े लगा लें, अगर आपने शाम को 6 किलोमीटर दौड़ लगाने के बाद बाहर आके स्टिंग की बोतल पकड़ के घर आना है, तो ये अब अनडू एवरीथिंग।
So in 2 weeks Johnny lost 2 weeks. 2 वीक ही जाया किए हैं, वेट नहीं लॉस हुआ उसका. ओके, बिकॉज दिस इज अ हार्मोनल डिजीज. हार्मोन्स को फिक्स करके, इंसुलिन को फिक्स करके, कार्टिसोल को फिक्स करके, ये हार्मोनल डिजीज है, ये कैलोरीज की डिजीज नहीं है. सो वी डो नॉट गेट फैट बिकॉज वी ओवर ईट बिकॉज वी गेट फैट. हमारे लेप्टिन सिक्रीशन जो है वो खराब हो जाती है. लंबा काम है, एक दिन में नहीं होना, हम आगे भी इस पे करेंगे, लेकिन आज आपको बेसिक में समझानी चाह रहा हूं. ओबेसिटी इज काज्ड बाय योर जीन्स. बिल्कुल कोई जीन से नहीं. अगर ऐसी बात होती तो ये हर साल ही जीन हमारे चेंज हो रहे हैं, एवरी अदर ईयर. नॉट पॉसिबल. Obesity is caused by lack of willpower. It is just like blaming the victim. वो बंदे बेचारे को हम ब्लेम करते रहते हैं, तू खाना ज्यादा, तू खाना ज्यादा, तू एक्सरसाइज नहीं करता. भाई उसका खाना इसलिए ज्यादा है कि उसकी इंसुलिन ज्यादा है. उसका खाना इसलिए ज्यादा है कि उसके अंदर फ्रुक्टोज ज्यादा है. दे आर ऑल एडिक्टिव. उसकी फास्ट फूड ज्यादा है, उसका प्रोसेस फूड ज्यादा है. उससे उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस ऐसी आते हैं जिसकी जो उसको भूख पे उकसाती हैं. और जब आपको भूख ज्यादा लगती है, आप ज्यादा खाते हैं, तो आप कभी देखिएगा, अभी याद है लोग यहाँ पे शायद डोज कर रहे हो खाना खाने के बाद, आपको क्यों नींद आ जाती है? जब आप ज्यादा खाएंगे तो एक्सरसाइज को दिल किसका करना है? सो दिस इज अ हार्मोनल प्रॉब्लम. डोंट ब्लेम द पेशेंट. ये उसका कसूर नहीं है. डोंट ब्लेम द विक्टिम. वो ऑलरेडी बेचारा इसका शिकार है. सो फाइनल, जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो स्पाइक सबसे ज्यादा आती है इंसुलिन की. जब इंसुलिन की स्पाइक बड़ी आएगी तो आपकी स्टोरेज भी फैट की ज्यादा होगी. स्टोरेज आपकी कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ फैट ज्यादा होगी. जब आप प्रोटीन्स और फैट्स खाएंगे तो उसके साथ स्टाइटी भी आती है. नीचे कुछ हार्मोन्स हैं, ये स्टाइटी हार्मोन्स हैं जो कि फैट और प्रोटीन के साथ आते हैं. आपको तसल्ली तशफ़ी ज्यादा होती है. आप 6 ग्लास कोक के तो पी सकते हैं, आप 2 पीस चिकन के नहीं खा सकेंगे. आप एक मक्खन का पूरा पेड़ा कभी नहीं खा सकेंगे, बिकॉज दे कंटेन स्टाइटी हार्मोन्स, while carbs don't. They contain insulin, they contain carbohydrates, they cause the insulin spike. So final lesson क्या है? Cut the carbs, prioritize proteins and fill with fats. ये crux of the presentation है. This is the simple mantra for the weight loss. Another, change the order of your macronutrients. अब सारे डॉक्टर साहब आपने तो सब कुछ ही बंद कर दिया. अगर ये नहीं होता तो अगला मंत्रा नंबर 2, चेंज द ऑर्डर ऑफ योर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. 3 ही थे ना. दिस स्टडी वाज डन इन I think 2015, sorry. Food order has a significant impact on the postprandial glucose and insulin levels. कैसे? यहां देखिए, ये जो रेड लाइन है ये उन लोगों की है जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट को पहले खाया. कौन से कार्बोहाइड्रेट से? इस स्टडी में ब्रेड एंड ऑरेंज जूसेस इनको पहले दिए गए और 10 मिनट के बाद प्रोटीन्स दी गई, इनको फैट दिया गया. तो इनकी जो कर्व आई वो रेड वाली है. देखिए कहां जा रही है इंसुलिन, कहां पे जा रही है स्पाइक करके? कार्बोहाइड्रेट के साथ. आप ये देखिए ग्लूकोज लेवल और इंसुलिन स्पाइक करेगी. और जब इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया गया, उनको प्रोटीन, चिकन, सैलड और वेजिटेबल पहले दी गई और कार्बोहाइड्रेट्स बाद में दिए गए, तो फिर ब्लू लाइन देख ले नीचे बनी. नो इंपैक्ट ऑन इंसुलिन, नो इंपैक्ट ऑन, वो वेरी माइल्ड और निग्लिजिबल इंपैक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स. आगे चलें. द इंपैक्ट ऑफ फूड ऑर्डर ऑन पोस्टप्रेंडियल ग्लाइसीमिया इन प्री डायबिटीज. प्री डायबिटीज पे यही तजर्बा किया. कार्ब्स फर्स्ट, येलो लाइन. जैसे कार्ब्स लिए विद इन 60 मिनट आसमान पे गया ग्लूकोज लेवल, और उसी तेजी के साथ तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद ये जमीन पे आ गिरा और आपका पेशेंट प्री डायबिटिक जो कि शायद मेटफॉर्मिन या कुछ ले रहा था, अब उसको हाइपोज की सिम्टम आनी शुरू हो गई. जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे भी आ गया. और जब उनको प्रोटीन और वेजिटेबल्स पहले दी गई, कार्ब्स लास्ट, तो नीचे की 2 लाइनें देख लें. निग्लिजिबल इफेक्ट है. आखिर में यही तजर्बा किया गया. ये तो बताया गया जी कि किस तरह से ये एकदम से गिरता है 180 मिनट के बाद. यही तजर्बा टाइप 1 वालों पे किया गया, तो यहां पे भी यही रिजल्ट्स थे. 2 slices of brown bread followed by turkey and cheese.
तो ऊपर वाली जो ब्लैक लाइन है उसमें कार्ब फर्स्ट के साथ आप देख लें ग्लूकोज कहां जाता है, और नीचे वाली जब इस ऑर्डर को चेंज कर दिया तो फिर क्या हुआ। तो अगर आपने कार्ब्स खाने भी हैं तो वो 10 से 15 मिनट बाद में खाएं। ठीक हो गया। लास्ट स्लाइड, तीसरा मंत्र, ऐड फाइबर टू योर डाइट। फाइबर अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। अब यहां से मेरी प्रेजेंटेशन जस्ट 2 मिनट की और है, ठीक है। फाइबर इज एन एंटीडोट फॉर द शुगर। अल्लाह मियां ने आज तक दुनिया में जितने पॉइजन्स पैदा किए हैं उसका साथ एंटीडोट भी दिया है। तो शुगर का एंटीडोट क्या है? फाइबर। फाइबर डज 6 marvelous things in your body. पहला, it forms the bulk, और जब ये बल्क फॉर्मिंग आपके ये जो है फाइबर्स, दे स्ट्रेच द मैकेनोरेसेप्टर्स इन द स्टमक, और इससे आपकी सटाइटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है। दे मेक योर फूड मूव फास्टर थ्रू द इंटेस्टाइन। तो पहला काम तो ये करते हैं। They create a barrier between the endothelial lining of your gut and your food. वो endothelial lining जिसको म्यूसिन लेयर कहते हैं, अगर आपके फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है, फ्रुक्टोज ज्यादा है, और वो म्यूसिन लेयर किसी जगह से ब्रेक की हुई है, तो उनकी बड़ी तेजी से एब्जॉर्प्शन हो जाएगी और ग्लूकोज लेवल ऊपर जाएगा। सो दे मेक अ लेयर बिटवीन द फूड एंड द म्यूसिन लेयर ऑफ योर गट, और आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देख भी सकते हैं, व्हाइट लेयर नजर आती है। तो इट क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन द गट एंडोथेलियम एंड द फूड। सो आपके जो सिंपल स्टार्चेज हैं, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सारे इनकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देन फूड रीचेस टू द जेजुनम। जेजुनम के अंदर सारी माइक्रोबायोम है, जो आपके बैक्टीरियाज हैं बॉडी में। कितने बैक्टीरिया हैं आपकी बॉडी में? आपके अंदाजे के मुताबिक आपके जिस्म में कितने बैक्टीरिया होते हैं एक बंदे के? है 370 ट्रिलियन। चले, आपकी बॉडी में सर से लेके पांव तक 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। सेल्स सर, आप बैक्टीरिया की बात करें, मैं सेल्स की कर रहा हूं सर। 100 ट्रिलियन, आप दोबारा देख लीजिएगा। आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट 10 ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी में, सर से लेके पांव तक 10 ट्रिलियन, और 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है इनसाइड योर गट। सो योर बैक्टीरिया आउट नंबर द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन योर बॉडी। सो एवरी वन ऑफ अस इज अ बिग बैग ऑफ बैक्टीरिया विद लेग्स। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। ठीक है, ये है इंसान की हकीकत। एवरीबॉडी ऑफ अस इज अ बिग बैग ऑफ बैक्टीरिया विद लेग्स। ठीक हो गया। अब ये बैक्टीरिया जो है, वो फाइबर जो है जितना भी आप खाते हैं, दैट इज फॉर दोज बैक्टीरिया। जब वो बैक्टीरिया वो फाइबर ले लेते हैं, तो बैक्टीरिया को अपनी खुराक मिल जाती है, और ये खुराक आपके फाइबर से मिलती है। आपको फाइबर आपके लिए नहीं है, फाइबर इज फॉर योर बैक्टीरिया। क्योंकि अगर आप इस बैक्टीरिया को खुराक नहीं देंगे, वो उस म्यूसिन लेयर को खाना शुरू कर देगा। सो द नॉर्मल कमेंसल्स विल बिकम पैरासाइट्स। अगर आप उनको फाइबर नहीं देंगे खाने को, वो आपकी म्यूसिन लेयर। क्यों आज आपका हर बंदा मैदे को लिए फिरता है? मैं 5 साल से राइजिक खा रहा हूं, मैं 10 सालों से मैं डॉक्टर साहब ये खाए ना तो खाना हजम नहीं होता, मैदे में दर्द होती है, क्या वजह? तो फिर मैंने शुरू में सही कहा था कि दीज आर ऑल द सिम्टम्स व्हिच वी आर गोइंग टू ट्रीट विद द मेडिसिन। Every other patient is addicted to these PPIs. है ऐसा कि नहीं? अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में बताइए। हर बंदा उठते वक्त एक बार बात होगी, डॉक्टर साहब एक गल तो दसना भूल ही गया, मेरे मेदे का ख्याल रखना। ऐ नहीं जी ठीक है, कदों तो ठीक नहीं है। तो 10 साल हो गए राइजिक खाते, 15 साल तो मैं तो ओमेगा खा रहे। इज इट द केस और नॉट? आगे चलते हैं जी। उसके बाद ये पहुंचा नीचे, जेजुनम के बाद क्या है? आइलियम। आइलियम के अंदर आपका एक हार्मोन रिलीज होता है जैसे ही फूड यहां पहुंचता है, पेप्टाइड वाई, विच इज अ सिग्नल टू द ब्रेन कि जी इनफ, अब मैं भर गया हूं, मुझे मजीद खाना नहीं चाहिए। सो यू डोंट गो फॉर द सेकंड पोर्शन, आप दूसरी दफा खाना खाने नहीं जाएंगे। सो फाइबर तेजी से मूव करता हुआ इसको आइलियम तक ले आता है, और वहां से पेप्टाइड वाई का हार्मोन रिलीज होता है, और आपका खाना जो है आपको सेकंड पोर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर
clonic bacteria convert sugars into short chain fatty acids, butyrate, propionate, acetate, which are anti-insulin and anti-inflammatory. यही हमें चाहिए. और these fibers are acting as a little scrubbies in your colon, and they scrub off all the colonic कैंसर सेल्स. ये उनको भी स्क्रब ऑफ साथ साथ करते रहते हैं जिन्होंने आगे चल के कैंसर बनना था, जिनकी एबनॉर्मल ग्रोथ हुई. सो दीज 6 benefits you can take from the fiber. Please eat your fruit, don't drink it. ये जो फ्रेश जूसेस का आपका कॉन्सेप्ट है, इट इज गार्बेज. फ्रेश जूस निकाल के आप फाइबर बाहर फेंक देते हैं, प्योर कार्बोहाइड्रेट एक्सट्रैक्ट करके 2 ग्लास. मैंने बच्चे को, जी डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा था, मैंने बोतलें बंद की, अब मैं सुबह उसको फ्रेश जूस बना के देती हूँ 2-4 एप्पल्स का. तो क्या होगा? प्योर कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन स्पाइक, बच्चा मोटा हो जाता है 6 महीने के बाद. फास्टिंग इज द बेस्ट डाइट. फास्टिंग इज द बेस्ट डाइट. और अभी तक इस पूरी प्रेजेंटेशन में मैंने किसी दवा का जिक्र नहीं किया. मैंने किसी दवाई को प्रमोट नहीं किया. मैंने ऑर्लिस की बात नहीं की, मैंने प्रोपोल की बात नहीं की, मैंने GLP-1 एनालॉग्स की बात नहीं की. ठीक है? वजह क्या है? जो मॉडर्न साइंस का फादर जिसे कहते हैं सर विलियम ऑसलर को, वो ये कहता है, one of the first duties of the physician is to educate the masses, not to take the medicine. Thank you very much. Now we are here to answer your questions. फाइबर का फर्क है और उसका कार्ब्स का फर्क है ना. जब आप एक्सट्रैक्ट करते, पहली बात, मैं आपको अभी सेब रखता हूं यहां पे, मैं कहता हूं खाएं आप 1 या 2 खा सकेंगे. जूस निकलना 6 सेबों से. अगर आप एज ए होल खाएंगे आपको फाइबर भी मिल गया, कार्ब्स आपके कम रहे. जब जूस निकालते हैं, दिस इज प्योर कार्बोहाइड्रेट. सो नाउ फाइबर आपने बाहर फेंक दिया, 6 बेनिफिट्स खत्म हो गए. नाउ आपने सिर्फ कार्ब्स लिए, उससे इंसुलिन स्पाइक करेगी, आप मोटा होना शुरू हो जाएंगे. एंड दिस इज द केस नॉट ओनली विद द आर्टिफिशियल जूसेस बट आल्सो विद द फ्रेश जूसेस. जी, फ्रुक्टोज एक पॉइजन है. फ्रूट नहीं, फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज इज अ पॉइजन. फ्रुक्टोज इज पॉइजन. और ऐसा ही है जैसे एथेनॉल है, इक्विवेलेंट है उसका सारा. यस, उसका लिवर का प्रोसेस भी एक जैसा ही है. सेम है. सवाल ये है कि अगर फ्रुक्टोज पॉइजन है, जैसा कि आपने बताया अपने लेक्चर में, तो नेचर में जितने फ्रूट्स हैं वो फ्रुक्टोज में क्यों हैं? वेरी गुड क्वेश्चन. फ्रूट के अंदर फ्रुक्टोज है और ये तो नेचुरल है. यस, फ्रुक्टोज इन द फ्रूट इज नेचुरल, but we don't use it in a natural way. हम इसको नेचुरल वे में यूज नहीं करते. सुन ले क्यों है ये भी मैं बता देता हूं कि ये क्यों है. ये ग्लूकोज से, सुक्रोज है मिसाल के तौर पे. सुक्रोज इज अ कंपोनेंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. ग्लूकोज मीठा नहीं होता, आप ग्लैक्सोज डी को भूल जाए फिलहाल. ये शुगर में या शुगर केन में आपकी जो ग्लूकोज है उसके साथ फ्रुक्टोज इसलिए ऐड की गई है कि इट एड्स पैलेटेबिलिटी एंड स्वीटनेस. इसका काम सिवाय जुबान को मीठा देने के कोई नहीं है. नन ऑफ द सेल्स इन योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो नीड्स फ्रुक्टोज फॉर एनी ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन. व्हेन यू यूज फ्रुक्टोज इट डायरेक्टली गोज टू द लिवर. अब नेचुरल वे तो ये है, आपने 1 सेब खा लिया, आपने 1 प्याली भर के तरबूज खा लिया, ठीक है, your liver can handle it very well. No, this is based on the amount of the fructose. उसमें कितनी है? This is based on quantity. सुन लें सर, सुन लें. हाँ, तो लिवर की एक कैपेसिटी है. मैं आपको समझा नहीं पा रहा. फ्रुक्टोज को देखिए, फ्रुक्टोज बॉडी में चली गई,
बॉडी में जाने के बाद किसी सेल में ये नहीं दरकार, इट डायरेक्टली गोज टू द लिवर। अब लिवर के अंदर आ गई, लिवर हैज अ वेरी लिमिटेड कैपेसिटी, वेरी स्मॉल कैपेसिटी टू हैंडल फ्रुक्टोज। वो इसीलिए ये फलों के अंदर है, तो अल्लाह मियां ने इसका इंतजाम भी किया है। हम फलों का जूस निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, दोपहर को हमने, अभी आप शुगर वालों से पूछ लें, डॉक्टर साहब मैं तो खाना नहीं खाता, दोपहर को सिर्फ फल खाता हूं। भाई कितने फल? सर आधा का खरबूजा होता है। आपने केले बंद किए थे तो मैंने बस आधा केला उसमें होता है, ठीक है। अब आम आए हुए हैं, आपको पता आम तो नहीं छोड़ सकते, तो वो 2 आम होते हैं। फिर सोने से पहले मैं क्या करता हूं कि दूध के अंदर ना खजूरें डाल के, तो वी आर नॉट यूजिंग द फ्रूट इन अ नेचुरल वे। हम फ्रूट को अनड्यू यूज करते हैं। फ्रूट इज जस्ट फॉर अ फ्लेवर। हम जब फ्रूट को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ये फ्रुक्टोज वुड बी कन्वर्टेड इनटू द फैट बाय डिनोवो लाइपोजेनेसिस एंड दैट इज टॉक्सिक। ये फैट जब आपके बाकी सेल्स के अंदर जाती है तो उसका जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन करती है, 3 किस्म के एंजाइम्स को ब्लॉक कर देती है फ्रुक्टोज, जो कि आपके नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, फिर वो बायोकेमिस्ट्री शुरू हो जाएगी तो वो काम लंबा हो जाएगा। 3 क्लियर करने की जी या मेटाबोलाइज करने की, उसकी जगह आप अगर 10 ग्राम फ्रुक्टोज ले लेंगे तो वो जो बाकी 9 ग्राम है हाँ, उसको वो लाइपोजेनेसिस कर देगा और क्योंकि वो बाकी 9 ग्राम खराब- किसी और सेल में यूज ही नहीं होने। जी डॉक्टर अकमल भट्टी साहब से हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज और है कि आप जब पूरा फ्रूट खाएंगे ना, उसमें जो फाइबर होगा, फाइबर उसकी एब्जॉर्प्शन को डिले करेगा वेरी करेक्ट। और ये डबल इफेक्ट होगा। एक नंबर ऑफ आप जो फ्रुक्टोज ले रहे हैं वो कम होगी, और दूसरी उसकी एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगी, बिकॉज फाइबर के अंदर मौजूद होगा, सो वो स्लोली एब्जॉर्ब होगा। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी डिलेड सिग्निफिकेंटली अगर फाइबर साथ लेके आप। और एक चीज और है मिर्जा साहब, 1 चम्मच चीनी अगर आप लेते हैं तो उसमें 52% फ्रुक्टोज है और 48% शुगर है। ये हम चीनी क्यों मना करते हैं, उसकी मेन रीजन सिर्फ यही होती है कि वो इतनी ज्यादा उसमें फ्रुक्टोज है। डॉक्टर बिस्मा, आप कुछ कहना चाहेंगी? काम है, होती सब में है। उसमें एवोकाडो सरेफेंस का, लेकिन एवोकाडो पाकिस्तान में इतना महंगा है कि एक एवोकाडो फ्रूट जो है ना, वो गार्बन को 8 या 900 रुपए का एक पीस मिलता है। और इसमें हम न्यूट्रिशनिस्ट की भी राय लेते हैं। आप सोर्सेस पूछना चाह रहे हैं फाइबर की? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम उसको फाइबर के साथ लेते हैं तो वो हेल्दी भी है। हाँ जी, हेल्दी है। मेरा सवाल ये है कि क्या नेचर में कोई ऐसे फ्रूट्स भी हैं जिसका फ्रुक्टोज नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइक मेजर फ्रूट्स जो हैं, जो जिनमें सबसे ज्यादा ग्लूकोज है, वो है मेलन, और आपके पास आ जाता है बनाना, मेलन नहीं, वाटरमेलन नहीं, मेलन, सरदा, या आप जिसको मतलब, और केले में ज्यादा होता है, बनाना पाइनएप्पल में होता है, और सबसे जो वर्स्ट है वो आम है अभी तक, जो मेन डायबिटिक वाला फ्रूट है। ये आपने वो मेजर बात की, मैंगोज के अलावा डेट्स में और ग्रेप्स में भी तो ग्लूकोज है। नहीं, फ्रुक्टोज तो हर जगह है, हर फल के अंदर कम मकदार, लेकिन हर फल में फ्रुक्टोज है। एक और चीज है कि हम लोग, और आप ये बताइए कि जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स में जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो फिर क्या बनता है? वाइन नहीं बनता क्या उससे? अल्कोहल। थैंक यू फॉर सर मेरा एक और चीज बताना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ने एक पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए एक आपको सेंसिटाइजर दिया है। ये एब्सोल्यूट टर्म्स में इसको ना लें, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज टू टेक होम है। यू नीड कार्बोहाइड्रेट्स, यू कांट सर्वाइव विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स। द ओनली थिंग ही इज स्ट्रेसिंग इज रिड्यूस योर कार्बोहाइड्रेट्स। आप उसको जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। इंप्रूव करें अपने फैट्स को, फैट से डरे ना। और इंटरमिटिंग फास्टिंग, ये जिससे हम सोचते हैं ना कभी इस्लाम में रोजा रखना क्यों फर्ज किया गया, ये हमारी अकल जो है ना वो बहुत अभी कमजोर है, हम आहिस्ता आहिस्ता ये सीख रहे हैं। आपसे पहले उम्मतों पे फर्ज किया गया था, हाँ। पुराने पाक में बता दिया। तो ये चीजें अब हमारी अकल और समझ में आ रही हैं।
जब हम साइंस में उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं कि ओहो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी सेहत के लिए बेहतर है। सो तो टेक होम मैसेज को स्ट्रेस करने के लिए इन एब्सोल्यूट टर्म्स डॉक्टर साहब ने ये बात की है। आप निटी-ग्रिटी में जाएंगे, आप ये कहेंगे कि आप फ्रुक्टोज बिल्कुल नहीं खा सकते। ये भी तो बताया ना कि साथ आपको फूड ऑर्डर भी चेंज करने का बताया ना कि आप ऑर्डर चेंज करने हैं। जी मेरा सवाल ताहिर साहब से है कि एक्सीलेंट। और आज से आपको पता है कि जब हमने पहले लेक्चर शुरू किया था तो हमने रिवर्सल ऑफ डायबिटीज के ऊपर काम किया और उसके ऊपर मैंने कोई 20 to 30 पेशेंट कंटिन्यूसली जो है वो उनको हम देख रहे हैं और कर भी रहे हैं उस पर। मेरा ये सवाल है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस सारी अंदरून शहर में है, ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट में, तो वहाँ पे अक्सर लोग ऐसे आते हैं कि वो ये कहते हैं कि हम जो है वो किसी तरह का कोई फ्रूट जो है ना खा नहीं सकते या हमें इसका टेस्ट नहीं आता। तो मेरा ये सवाल है कि अगर हम उसको सिंपल वाटर में ग्राइंड करके अगर वो एप्पल वगैरह ले सके तो उसमें तो चूंकि वो आपका वो वाला सिलसिला नहीं होगा कि आपने जूस ले लिया और फाइबर निकाल दिया। फाइबर समेत जो भी लेंगे थे आप न्यूट्रिशनिस्ट को भी इन्वॉल्व करें कि अगर एक पेशेंट ने फल खाना है, ठीक है, और हम उसको जूस नहीं देना चाह रहे और वो कहता है मुझसे वैसे फल नहीं खाया जाता, तो आप क्या ऑप्शन देती हैं? एक तो जब हम डायबिटिक मैनेजमेंट कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर जब हम डायबिटिक मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम एक फैक्टर देखते हैं, वो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वो हर फल का और हर सब्जी का अलग अलग है। तो उसके अंदर मतलब उसके 3 वो सीजन्स होते हैं कि एक उसका रेड पोर्शन होता है, एक आपके पास जोन रेड जोन होता है, ग्रीन जोन होता है और एक ऑरेंज जोन होता है। ग्रीन जोन के फल वो वाले होते हैं जो आप इजीली खा सकते हैं, उसके अंदर शुगर लेवल लो होता है और फाइबर लेवल जब हाई होता है तो वो आपके ग्लूकोज लेवल्स को स्पाइक नहीं कर रहा होता। तो डायबिटीज मैनेजमेंट के अंदर ये 3 चीजें लाजमी देखी जाती हैं कि जो हाई ग्लूकोज वाले फूड है हम उनको कम करवा देते हैं या वक्ती तौर पे बिल्कुल बंद करवा देते हैं। और जैसे हमने बात की कि एक पेशेंट है उसका बहुत दिल कर रहा है कि उसको वाटरमेलन इनटेक करना है, तो उसको हम बहुत कम मिकदार में और उससे कहेंगे कि उसको ढेर सारे पानी के अंदर ब्लेंड कर लो और फिर उसका आपने स्टेन नहीं करना क्योंकि फाइबर इनटेक करना ही है। तो इस कंडीशन के अंदर वंस इन अ वीक हम दे सकते हैं। सर्विंग साइज बहुत ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है जो हम देख रहे होते हैं पेशेंट का साइड बाय और साइड। हम लोग सबसे जो मेजर चीज गलत करते हैं, हम लोग जूस बनाते हुए क्या करते हैं कि उसका फाइबर जो है हम टोटली इसको निकाल देते हैं और जिसका जूस होता है ग्लूकोज फॉर्म में हम वो डायरेक्टली इनटेक कर लेते हैं आजकल और इसमें हम लोग इवन चीनी भी डाल लेते हैं अपनी मर्जी से। हाँ, अब मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि फालसे का जूस मतलब वो पल्प के साथ ले रहे हो, हमेशा पल्प साइड पे होता है, उसका जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो आप इनटेक कर रहे होते हो, व्हिच इज इक्वली डेंजरस। वो तो डिपेंड करेगा ना कि जब आप उसको गाइडलाइन देते हैं कि सिंपल वाटर में आपने वैसे ही इसको wash हाँ, करके मतलब उसको आपने स्टेन ना grind करें, किया। उसको फिल्टर ना करें, मतलब ब्लेंड ना करें, तो वो बेस्ट हो। उसको नेचुरल फॉर्म में लें जिस तरह फल है। और दूसरा ये है कि जैसे लोग मिल्क शेक सुबह नाश्ते में यूज कर लेते हैं, बिल्कुल। मसलन कि अब आपको apple देखिए और मिल्क- शुगर है, तो क्या वो भी हम इसमें दे सकते हैं वेट रिडक्शन? नहीं नहीं, मिल्क मिल्क शेक बिल्कुल नॉट अलाउड। कुछ क्वेश्चंस ऑनलाइन भी हैं डॉक्टर साहब। अब मिल्क शेक भी जब हम बनाते ले नहीं हैं, सकता तो फिर वो मिल्क- कैसे उसका बाकी सिस्टम कैसे चलेगा? हाँ जी, नहीं आप फैटी मिल्क भी ले सकते हैं सर, क्रीमी मिल्क भी ले सकते हैं आप, क्यों? हाँ, क्यों करते हैं? मलाई। सर एक और फैक्टर, एक तो फैट तो रिड्यूस करनी नहीं है। हम लोग, और साथ ही हाँ, मैं बताती हूँ। और एक बात ये भी याद Dietary रखिएगा, fat- this is another take home। अगर कोई कंपनी ये कहती है कि हमने आपके बच्चे के लिए या आपके लिए नेचर से बेहतर दूध बना लिया है, वो नहीं तो हो वो सकता। झूठ बोल दिया है। दूध वही है जो जानवर के जिस्म या इंसान के जिस्म से नेचुरल दूध बाहर आता है, ठीक है। ये जो स्किम मिल्क हो गए, डब्बों में मिल्क हो गए, these are all processed foods जिनकी हमने बात की। केमिकल तो हम लोग उसमें से फैट निकाल लेते हैं, मलाई निकाल लेते हैं। जैसे टी वाइटनर डाले, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं चीनी नहीं डालता, टी वाइटनर की वो तो फुल मीठी है। और मिल्क शेक खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि जब हम डाइट थेरेप्यूटिक डाइटरी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो हम 2 से 3 ग्लूकोज के सोर्सेज को इकट्ठे नहीं करते। दूध के अंदर भी शुगर है, फल के अंदर भी शुगर है, तो हम अलग अलग देंगे। एक ही अगर नाश्ता करे तो उसके अंदर हम उसको ये नहीं कहेंगे कि एक टाइम पे दूध पी ले साथ ही फल खा ले। उसको हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट के ऊपर रखेंगे, थोड़ी देर के बाद थोड़ा पोर्शन उसका ग्लूकोज का या कोई कार्बोहाइड्रेट का उसको देंगे, थोड़ी रोटी हेलो हेलो बिल्कुल। तो हम मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन जो लोग हैं उनको भी कुछ मौका दिया जाए। ऑनलाइन क्वेश्चंस भी हैं। आप मिक्स करें, मिल्क शेक जब भी बनाएंगे आप, सेंस भी हो रही है और कैलोरी ज्यादा जा रही है, कार्ब ज्यादा जा रहे हैं बॉडी में। डिटॉक्स वाटर का concept जो है फ्रूट में फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज इज अ detrimental poison, while galactose is not a poison to that extent, but that is also a form of carbohydrate.
बात तो ये ना कि कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कम जाने चाहिए एट अ टाइम। कार्बोहाइड्रेट्स को मेंटेन करना है, उस 20% अब मिल्क अलग कर ले, फ्रूट अलग तीन कर ले। मील्स के अंदर डिवाइड डिवाइड करना है। एक तो आपने उस अगर आप अच्छा जी, कुछ ऑनलाइन क्वेश्चंस भी हैं मेरा ख्याल है, Online वो भी questions include दें। करें ताकि लोग जो काफी जी टाइम रिस्ट्रिक्टेड। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि आप सबसे पहले ये बता दें कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फाइबर। फाइबर क्या होता है? Composition of fiber. तो ये तो ग्लूकोज तो हो गया ये। फाइबर दो तरह के हैं। Little of my knowledge, I would like to say that they are the all glucose, sucrose, fructose, and galactose. They are the monosaccharides. They are all hexose. They are the monosaccharides. When two monosaccharides combine, they form disaccharides. For example, two molecules of glucose combine to make maltose. One molecule of glucose and one molecule of fructose combine to make sucrose, which is your ordinary table sugar. And then when two molecules of galactose combine, they make lactose, which is a milk sugar. So these are all disaccharides, they are all hexoses, disaccharides, and the disaccharides combined together, they form polysaccharides and peptides and polysaccharides. And polysaccharides, one example is starch and the other example is dextrin. Very So good. I would like to know that what is the composition of fiber, Yes. which is we are making it more discussable. जी जी, बस ते सारे सवाल पहले ही पूछ लेना चाहिए, सारी गल का की फायदा होया। चलो अच्छा जी, आप में से कोई डाइटिशियन इस पे तो अच्छा जी, हमें आई एम thoroughly impressed by your knowledge. डॉक्टर साहब ऑनलाइन क्वेश्चन ले अच्छा लें। जी, To अब आप ये to the बताइएगा leader of my knowledge. जी, अब आप ये बताइएगा जी, उनका सवाल ये है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फाइबर, ये आप बताएंगे या मैं बताऊं? आप बेहतर बता। मैं बेहतर बता सकता हूँ, चलिए आई विल ट्राई। फाइबर इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, soluble and insoluble. Insoluble fiber is like, you know, this is your cellulose. This forms a fish net, like जैसे आपका मछली का जाल होता है. This makes a fish net. And insoluble, so the soluble fiber, insoluble से fish net बनता है. This is like cellulose. और जो आपका इसके अंदर soluble fiber है, that is hydrophilic, that is pectin, that is cellulose, or sorry, that is pectin and inulins. ये सारी चीजें मिलके they make globules. ये उस fish net के अंदर जाके उसको भर देती हैं. Insoluble fiber, cellulose, soluble fiber, pectin, inulins, ये सारे जब मिलते हैं आपस में तो ये उस फिश नेट को भर देते हैं, और ये फिश नेट ही जाके आपके गट के जो लाइनिंग है उसके ऊपर एक कोटिंग कर देता है व्हाइट कलर की. सो फाइबर अगर आप अकेला लेंगे, जैसे आप सिंपल ले, आप ये ले लें, आप क्या कहते हैं, सेलुलोज ले, इट वुड बी जस्ट लाइक अ कार्डबोर्ड, जैसे आप गत्ता खा रहे हैं. आप खा ही नहीं सकते फाइबर, अकेला फाइबर खा ही नहीं सकते. सो दुनिया में अल्लाह मियां ने जितने भी फूड्स पैदा किए हैं, मसलन फाइबर ऑलवेज विद सम अमाउंट ऑफ फैट और शुगर. दुनिया में अल्लाह मियां ने जितनी फैट पैदा की है, दैट इज ऑल विद प्रोटीन. दुनिया में मुझे कोई नेचुरल आप फैट या प्रोटीन बता दें जो एक दूसरे के बगैर आती है. अंडा ले लें, गोश्त किसी किस्म का ले लें, पोल्ट्री ले लें. सो आपके सवाल का जवाब ये है कि दो तरह के सॉल्युबल, दो तरह के फाइबर्स हैं, जिसका मैंने जवाब आपको दे दिया और दोनों का काम भी आपको बता दिया. नेचर ने आप फाइबर तो आपके लिए है ही नहीं. पहली बात तो ये समझ ले, फाइबर आपके लिए नहीं है. But it is all important in the diet because more stress is 6 फायदे बताए. fiber diet. मैंने 6 फायदे बताए. Yes, yes, of course, more than 6. फाइबर इज नॉट फॉर योर सेल्फ, फाइबर इज फॉर योर बैक्टीरियाज. ये बात समझ लें, फाइबर आपके लिए नहीं है. आप फाइबर ना अकेला खा सकते हैं, ना ये आपके लिए है. दिस इज फॉर योर माइक्रोबायोम. जी, आप ऑनलाइन क्वेश्चंस लें. डॉक्टर अकमल, आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट द डाइट कोक और डाइट पेप्सी, आर दे सेम हार्मफुल एज द रेगुलर ड्रिंक्स? दे आर द सेम थिंग. ये एक मिसनोबर है और ये कंपनी की तरफ से चीज बेचने का तरीकाकार है. एंड ऑफ द डे दे आर नॉट यूजफुल. जो चीज बात है,
देखो मैसेज ये है कि नेचुरल फ्रूट लें और नेचुरल चीजें लें और नेचुरल फॉर्म में रहें। जितना ज्यादा कुक भी करेंगे, और कुकिंग भी डिस्ट्रॉय करती है। और एक चीज याद रखें, जो अल्लाह ताला ने जो फल फ्रूट बनाया हुआ है, जैसे केला है, उसका छिलका ना उतारें, अच्छी तरह धो लें। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर इन द आउटर पार्ट ऑफ द फ्रूट, सो उस सारे का सारा कंज्यूम करें। डॉक्टर बिस्वा, आपके लिए क्वेश्चन है डॉक्टर मोहम्मद आजम खान का। व्हाट आर द कॉमन पाकिस्तानी फूड्स जो कि इसमें फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स? फैट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जितने भी हम डाइटरी फैट और जो हमारा इंटरनल फैट है, ये बहुत दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है। डाइटरी फैट आपको जिस तरह भैंस का दूध होता है, काउज मिल्क से मिल जाता है, बेस्ट सोर्स है इसकी। मलाई आप बिल्कुल ना निकालें इसको, एज अ मतलब बेटर सोर्स ऑफ आप ये फैट ले सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपको हार्म नहीं करेगा। हमारा ये सीन अब है कि हम लोग ज्यादातर मस्टर्ड ऑयल्स और ये जितने प्रोसेस्ड आ जाते हैं जिनके अंदर ग्लूकोज अमाउंट एडिड है, हम लोग वो करते हैं, ना ही कि हम लोग नेचुरल फॉर्म में लेते हैं। जिस तरह सरसों का तेल हम लोग मतलब पहले खाने उनमें बनते होते थे, तो वो एक ताजा मतलब एक खुराक कहते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि उसी को हम डालडा कुकिंग ऑयल की तरफ ले आए हैं, तो विच इज मोर वर्स, क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए भी इसके अंदर कॉर्न सीरप्स और डिफरेंट प्रोसेस चीजें डल रही हैं। अच्छा, इसमें मैं ऐड कर दूं डॉक्टर आजम खान साहब के लिए कि वी फॉरबिड द सीड ऑयल्स, ठीक है। वैसे भी वो सीड ऑयल्स नहीं है, या वेजिटेबल ऑयल्स जिनका नाम रखा हुआ है, कैनोला, सूरजमुखी का तेल, और ये जो आपका है, इसके अलावा ये है कॉर्न ऑयल, पाम ऑयल, ये सारे जो है ये एक्चुअली ये वेस्ट है, और इसको हम एज ए डाइट यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे यहाँ कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीजेस बढ़ रही हैं। हमारे लिए जो सेफ फैट्स हैं, उसमें हमारा जो ट्रेडिशनल देसी घी है, मक्खन है, उसके अलावा हम लोग अगर दूसरा, तो फिर हमारे लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये तीन है। खोपरा यानी इसका आपका गिरी का तेल, नारियल का, कोकोनट का और सरसों का तेल, दे आर मोर सेफर। क्योंकि जितने भी हमारे सीड ऑयल्स हैं, दे कंटेन अ मेटाबॉलिक टॉक्सिन विच इज कॉल्ड लेनोलिक एसिड, और लेनोलिक एसिड जो है दैट इज डेट्रीमेंटल फॉर योर आर्टीरियल हेल्थ। दीज आर द पॉइजन्स जो कि हमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज दे रहे हैं, और ये सारे सीड ऑयल्स के अंदर और वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर है। एंड उसके अंदर क्या चीज खराब है, दैट इज द लेनोलिक एसिड। जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है जी कि हम आप ये जो आपने सारी डिस्कशन की है, इसमें आपने बताया कि जब हमें वेट रिडक्शन करनी है तो हमने अपने कार्ब्स को कम करना जी। और जितना मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं अपनी कम नॉलेज होने का इख्तराफ करता हूँ, वो ये है कि जब हम इस तरह की डाइट किसी को सजेस्ट करते हैं तो ख्वातीन के लिए उसकी लिमिट 30 to 40 ग्राम होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, और जो मेल्स होते हैं उनकी 50 ग्राम के करीब होती है, जो कि आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा थोड़ी है जी। और जब हम इंटरनेशनल स्टडीज़ को देखते हैं तो हमें कोई ऐसी स्टडी नहीं मिली जो कि ईयर्स पर या 1 ईयर पे मुहित हो और उसमें इस तरह की डाइट बहुत सारे लोगों पर आई हो और उसके नतीजे में जो साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको स्टडी किया जाता हो। तो मैं अगरचे ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये इफेक्टिव है, नो डाउट अबाउट इट, इट इज इफेक्टिव, मगर इस वक्त इस स्टेज पर जो हमारे पास एविडेंस मौजूद है, इसको फ्रीली यानी कि पब्लिसाइज करना कि आप इसको अडॉप्ट करें एज ए लाइफस्टाइल, इसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अडॉप्ट करें, इज इट? जी, मैं इसका जवाब दूंगा। इट्स वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन उनका ये है कि जी कार्बोहाइड्रेट को कम किया जा सकता है अगर हम 50 ग्राम्स आप कह रहे हैं, हाँ जी, या 40 ग्राम्स वगैरह हम ले आए तो इससे वेट लॉस मुमकिन तो है, लेकिन इसको सस्टेन करना मुमकिन शायद नहीं होगा। ठीक है, स्टडीज बड़ी हैं वो, जी मैं बताता हूं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो ये है, मुझे आप ये बताइए कि जब हम प्रोटीन्स खाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? व्हाट द बॉडी गेट्स फ्रॉम द प्रोटीन्स? अमाइनो एसिड्स। यू हैव हर्ड द नेम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जब हम फैट खाते हैं तो हम क्या लेते हैं? फैटी एसिड्स। देयर आर एसेंशियल फैटी एसिड्स। Even the most dogmatic nutritionist in the world, please show me, it's a challenge, show me any book which has written essential carbohydrates. Carbohydrates are not essential for the life whatsoever. क्यों नहीं है? इसलिए कि अल्लाह मियां ने
ग्लूकोज इज दैट सो डैम इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ कि आपके लिवर के अंदर आप एक तजर्बा करें, जो अल्टीमेट कीटो डाइट्स कर रहे हैं, अल्टीमेट कीटो डाइट्स जो कि चखते भी नहीं है यार, सुबह उठ के उनका भी तो फास्टिंग लेवल ग्लूकोज का कुछ होता है, वो कहां से आता है? सर एक मिनट सर, बाद में मुझे फिनिश कर लेने दें, बाद में प्लीज। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी फैट्स और प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट मतलूबा मिकदार में बना लेगी। इट इज एसेंशियल टू हैव द कार्बोहाइड्रेट्स बट इट इज नॉट एसेंशियल टू कंज्यूम द कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपके सवाल का दूसरा पार्ट कि लोग ले नहीं पाते। अगर आपने वेट लॉस करना है तो आपको अपने कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट है पर डे 25 ग्राम से कम रखना है, और आइडियली 20 ग्राम। सही सब ठीक कह रहा हूं? 20 ग्राम से आपने कम रखना है। आप 20 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट, अगर आपका मरीज इतना पढ़ा लिखा है कि उसको कार्बोहाइड्रेट का ये वेट पता चल जाए, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हम इस चक्कर में पड़े ही ना, हम उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग दे दें, ठीक है। और उसमें बेस्ट जो वे है, जो सही साहब ने भी पिछली दफा यहां पे जिक्र किया था, आप कौन सा जी 16-8 16 आवर्स उसको आप फास्टिंग विंडो दे और 8 घंटे की ईटिंग विंडो दे, और वो खाए, उसमें कोई काउंट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ग्लूकोज वो ये ना पीता जाए, तो उसको कट करना है। अगर उसने वेट लॉस करना है तो हमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट 20 ग्राम से कम रखना पड़ेगा, और अगर हम जरा सा भी 1 ग्राम भी कार्बोहाइड्रेट ना लें तो हम मरने नहीं लगे। आई टेल यू विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। लेकिन इसके ऊपर बहुत स्टडीज मौजूद है कि यहाँ पे मसलन आज आप जाए, मैं आपको 2 स्टडीज का हवाला दे देता हूं। काउंटर पॉइंट स्टडी डन इन इंग्लैंड एंड डायरेक्ट ट्रायल डन इन इंग्लैंड। ये डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर कटिंग द कार्बोहाइड्रेट्स टू द लोएस्ट लेवल इन्होंने काम किया है, और अभी ये स्टडीज ऑन गोइंग है। As many as 45% of patients in both of these studies have reversed their diabetes, and they are still sustaining it for the last 2 years by cutting their carbohydrates. नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग को एब्सोल्यूट फास्ट पे करो आप। सुबह सर अपना जैसे हम रोजा रखते हैं, इस्लामी रोजा, वो रख लें, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन रख दें, 3 दिन रख दें। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग है कि उसमें 6 घंटे खाना है, और 16-8 है जी। 8 घंटे। हाँ जी, सही साहब इसका माहिर है, इन्होंने खुद पे अप्लाई किया। नहीं उसमें वाटर फास्ट कर सकते, वाटर और ऐसे ही आप ड्रिंक ले सकते हैं, जिस तरह ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, कॉफी है, ये आप उसी तरह लें विदाउट शुगर एंड मिल्क। ये आप चीज इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी मर्जी, पानी जितना मर्जी पिए। लेकिन एक चीज और मैं ऐड कर दूं, 1 ड्राई फास्ट जो कि हम इस्लामिक फास्ट रखते हैं, दैट इज इक्वल टू 4 वाटर फास्ट। 4 रोजों के बराबर है एक हमारा इस्लामिक रोजा। लेकिन जाहिर सी बात है, अब गर्मी है, हम ये तो नहीं कहते 47 में आप पानी ना पिए, तो वाटर फास्ट आप करें, 8 घंटे खाएं, 16 घंटे आप अपने आप को फ्री रखें। और 16 घंटे फ्री कैसे रख सकते हैं? बहुत आसान है। रात को जब आप आखिरी खाना खाएं, कोशिश करें 8 बजे खा लें, ठीक है जी। सुबह 8 बजे तक 12 घंटे हैं, इसमें आपने तकरीबन 8-10 घंटे सो के गुजार देने हैं। सुबह नाश्ता स्किप कर दें, डायरेक्ट लंच करें, ठीक है। 2 बजे खाना खाएं आप। उसी जो पीरियड, क्योंकि सारी रात जब आप नहीं खा रहे होते, आपका इंसुलिन लेवल वैसे ही गिर गया हुआ है, आप उसी को सस्टेन करें, आगे लेके चले, आपको कुछ नहीं होने लगा। क्योंकि जो आपने प्रोटीन खाई थी, जो आपने फैट्स खाए थे, बॉडी ने रात को आपके लिए कार्बोहाइड्रेट बना के बॉडी में रख दिए आपके। इसीलिए सुबह फास्टिंग लेवल कुछ ना कुछ तो शुगर का होता है ना। आप आराम से और आई एम नाउ वर्किंग ऑन इट, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूं। मैंने नाश्ता स्किप किया हुआ है, और मैं 2 बजे सीधा लंच लेता हूं आके, और एक रात को आके डिनर लेते हैं। और आई एम नाउ लूजिंग वेट ग्रेजुअली, क्योंकि मुझे शुरू किए अभी 15-20 दिन हुए। मैंने आपको आसान में बताया, क्योंकि चूंकि आपकी इंसुलिन ड्रॉप कर चुकी होती है। दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा कि ब्रेकफास्ट सुबह लेते हैं,
ब्रेकफास्ट जब आप अपना फास्ट ब्रेक करेंगे वही ब्रेकफास्ट। लेकिन अगर आप एक अंडा लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जर्दी क्यों नहीं, उसमें फैट्स भी लें। वो फैट्स है ना, लेकिन आप उसमें फैट्स के साथ कार्बोहाइड्रेट भी अंडे में प्योर अंडे में कार्बोहाइड्रेट की तरह बताइए। सर उसमें इसका चौधरी साहब इसका जवाब ये है कि आपने अपना मेटाबॉलिज्म को स्टॉप किया। अगर आप एक चम्मच चीनी भी लेते हैं ना तो मेटाबॉलिज्म रीस्टार्ट हो जाएगा, वो आपकी फास्टिंग खराब हो जाएगी। मतलब यह है चौधरी साहब के कहने का कि आपने 16 घंटे बॉडी को जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म उसको रीयूज करना है, आपने फैट को जो है वो कार्बोहाइड्रेट में तब्दील करना है। वो जो नहीं आपको हो जाए ऑयल कि- टैंकर दिखाया था, जब आप वो जो 16 घंटे फास्टिंग करेंगे तो आपकी बॉडी वो फैट यूज कर लेगी उस सोर्स में से, क्योंकि आप कार्ब्स नहीं ले रहे। तो वो जो बिग बैली फैट है या बट सिप्स के ऊपर है, आपकी बॉडी उसको यूज कर लेगी, उसको कंज्यूम कर लेगी। और इसमें एक और भी ब्यूटी है कि सबसे पहले रिवर्सल जो होगा ना फैट का, वो आपका विसरल फैट होगा। हाँ जी, ये सबसे बेहतरीन इसका जो रिजल्ट है ना, जो हेल्दी उस पैटर्न में जाता है, वो ये है कि सबसे पहले विसरल फैट आपकी और जाया खत्म होगा और उसके visceral- बाद बॉडी होगी। विसरल फैट ही सबसे बुरा फैट है, क्योंकि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फैट है। हाँ, मेरे ख्याल हम एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आ गए हैं और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइट हो गया। आई वुड लाइक टू ऐड दैट अगर आपने वेट लूज करना है तो उसमें एक्सरसाइज का रोल ना भूलें, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप जहां फैट मेबलाइज करेंगे वहां 30% अपने प्रोटीन भी बर्न करना शुरू कर देंगे। सो यू डोंट वांट टू लूज योर प्रोटीन मैस। सो आपने दोनों चीजों को कंबाइन करना है। एक तो आपने जो आपने जो बर्न करनी है, अगर आप अपना साथ साथ जो फैट की जगह एक्सरसाइज से मसल बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। मसल बिल्डिंग करनी है, वरना मसल मास भी लूज हो जाएगा। सो स्टडीज हैव शोन कि 30-35% जो है वो आप अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सेडेंटरी रहेंगे, तो 30% तो आपका मसल मास चला जाएगा, तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। सो आपने अगर 8000 स्टेप्स है या 30 मिनट्स 35 मिनट्स की जो मिनिमम 5 डेज एडीए कहती है एक्सरसाइज, वो आपने जरूर करनी है। सो ये सिंगल फास्टिंग से काम नहीं चलेगा, फास्टिंग के साथ एक्सरसाइज भी जरूरत है। और आपने देखे ना, ये तो एक एक्सट्रीम हो गया ये, और दूसरा कन्वेंशनल वे है जो डॉक्टर साहब शायद रिकमेंड करने की कोशिश करे हैं कि अगर आप ये नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, और आप ये समझते हैं कि अभी इतना एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि हम कसमिया तौर पे कह सकें कि ये चीज बेस्ट है। ऑनेस्टली ये चीजें आती हैं, और जो चीजें हमारी जो एक्सपीरियंस के हिसाब से 15-20 साल तक ना रहें और टेस्ट ऑफ टाइम से ना साबित हों, हम लोग फिजिशियन वी आर ट्रेन टू बी स्केप्टिकल। कितनी अच्छी दवाइयां आई और हमें पता लगा कि उनका क्या काम था। सो अगर आपने सिर्फ कन्वेंशनल पे जाना है तो कन्वेंशनल वे भी है कि आप उस तरीके से खाना खाएं, 3 वक्त खाना खाएं, जिसके लिए बच्चियां हमारी मौजूद हैं, इनसे मशवरा लें। ये आपको बताएंगे कि डाइट आपने कैसे मॉडिफाई करनी है, एक्सरसाइज कितनी करनी है। सो ये पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच बन जाएगा। अच्छा, इसी बात को सर आपकी इजाजत से मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि जब आप शाह जी जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल मास इंक्रीज होता है। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके घर के अंदर अब अफराद बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक बाबा जी थे, उनके 7 बच्चे थे, सातों एक कमरे में रहते थे। अब उनकी होगी शादियां, उनके साथ एक एक बच्चा साथ पैदा हो गया। अब उनके पास जगह कोई और नहीं है, उन्होंने उसी घर के अंदर कमरे डालने शुरू कर दिए ताकि ये सारे लोग अकोमोडेट हो जाएं। तो मसल बिल्डिंग बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपनी बॉडी में कमरे बढ़ा रहे हैं। जब आपके मसल मास बढ़ेगा, दैट विल इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी फॉर द फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, ये जो प्रोफेसर अकमल साहब ने बात की है, एक्सीलेंट है ये बात। आप देखें कि जो इतना एलेबोरेट किया था चौधरी साहब ने कोका कोला का, चंक फूड्स का, उसका क्या है। अब जो जापानीज है वो पहले ब्रेड यूज नहीं करते थे, वहाँ कंसेप्ट ही नहीं था। वहाँ 1900 के बाद ब्रेड यूज करना ही, और अब वो ब्रेड ही करते हैं, चावल नीचे चले गए हैं उनकी वो डाइट में। दूसरी चीज ये है कि जो इंसुलिन की बात कर रहे थे ताहिर चौधरी साहब, तो अब कंपनीज भी उस तरफ जो है वो टिल्ट होना शुरू हो गई हैं। आपके नॉलेज के लिए कि ये जो लीराग्लूटाइड उन्होंने बनाई है, इतनी महंगी इंसुलिन, वो क्या है। 16 तारीख को आप वो लेक्चर उसका सुनेंगे फ्लैटीज में, तो आपको यही होगा, आपको पता चल जाएगा कि उसका मेन जो सोर्स है वो क्या है। जो ताहिर चौधरी साहब ने कहा है 100% वो डिटो उसकी कॉपी है। थोड़ा सा वो लेक्चर देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की। अब अगर पेशेंट को जरूरत पड़ती है, वो ओरल मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता, तो आपने इंसुलिन पे नहीं जाना, GLP-1 पे जाना।
ये एक अलग स्टोरी है कि अनफॉर्चुनेटली GLP-1 अभी तक इतने एक्सपेंसिव हैं कि हम 18-20 हजार मिनिमम खर्चा एक आम आदमी के लिए नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट वी शुड नो एक दिन आएगा जब चाइना बनाएगा और एक रीजनेबल प्राइस पे ये रॉ मटेरियल इंडिया और चाइना से हमारे पास आएगा और हम एक रीजनेबल प्राइस पे दे सकेंगे। तो वही बात मैंने बताया ना कि अगर मुझे इजाजत दें तो इट वाज एन एक्सेलेंट लेक्चर, मतलब मैंने बड़ी देर के बाद इतना अच्छा लेक्चर सुना, ठीक है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एक स्टैंडिंग ओवेशन इनको मिलनी चाहिए ताहिर साहब को। ही हैज मेड मी प्राउड। थैंक यू। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट हिम। और दूसरा, जितना आप लोगों ने आपकी सोसाइटी के और जिस ऑड टाइम पे वीकेंड पे आप लोगों की इतने लोगों का आना मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग, और जिस हद से आपने इसमें इंटरैक्टिव तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया, इट वाज वंडरफुल। तो हैट्स ऑफ टू योर सोसाइटी एंड ऑल ऑफ यू, माशाल्लाह। सो दिस इज द वे लर्निंग गोज, दिस इज द वे हम एक दूसरे से मिलकर सीखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट ठीक करते हैं। सो साथ ही मैं समझता हूं कि अगर आप इजाजत दें इसको वाइंड अप कर लें जी सर, आप तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी, द ऑर्गेनाइजर्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, फेलो जो मेरे साथ बैठे हुए पैनलिस्ट, फॉर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इल्यूमिनेटिंग टॉक एंड डिस्कशन। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन, प्रोफेसर साहब और प्रोफेसर साहब की जो कोलैबोरेशन आप लोगों के साथ चल रही है, इट इज वंडरफुल। कंसल्टेंट्स और जनरल प्रैक्टिशनर्स का मैं समझता हूं कि जो कोर चीज हेल्थ केयर के लिए है वो जनरल प्रैक्टिशनर है। जब तक जनरल प्रैक्टिशनर्स इन चीजों के बारे में सेंसिटाइज नहीं होंगे, इनकलाब नहीं आएगा, हेल्थ केयर बेहतर नहीं हो सकती। ये चंद 100 कंसल्टेंट्स या सब स्पेशलिटी वाले एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, वो डायबिटीज के सिर्फ अमीर तरीन वो मरीज देख रहे होते हैं जो मैं और आप भी देख सकते हैं। रियली कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट जो एंडोक्रिनोलॉजी के प्रॉब्लम वाले हैं वो अक्सर गरीब हैं, वो आपके पास या मेरे पास ही आते हैं। सो जरूरी है कि हम सब की कोर बेसिक नॉलेज ठीक हो। और आखिर में गेट्स फार्मास्यूटिकल, जिन्होंने कि ये पीछे से बैक एंड के ऊपर सारी सर्विसेज प्रोवाइड की, खालिद साहब और बाकी नवीद चौधरी और सारी टीम, ये हमेशा इस किस्म की एकेडमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू अगेन ऑल द सपोर्ट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। मियां साहब ऑनलाइन है जी, मियां साहब सुन सकते हैं आप हमें? जी जी ताहिर साहब, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन और हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू सर, ऑल अंडर योर सुपरविजन एंड गाइडेंस सर, ऑन योर फुटस्टेप्स। रियली मजा आ गया। और मैं देख रहा था कि इन बॉक्स में लोगों ने इतने जबरदस्त कमेंट्स किए हैं और हर एक की डिमांड है, और इंशाल्लाह हम उन्हें ये लेक्चर जो है वो व्हाट्सएप में भी और यूट्यूब में भी, और जिनका ईमेल है उनको ईमेल पे भी प्रोवाइड करेंगे, और ये पूरा कोर्स हम उन्हें इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। और मैं अकमल भट्टी साहब का, जितने न्यूट्रिशनिस्ट और जितने हमारे दोस्त आए हैं ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और मेरा ख्याल है तो सब आपकी प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त थी, और क्वेश्चन आंसरिंग सेशन बड़ा, और पे माय सलाम टू ऑल माय कोलीग्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई सर, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सर आप लंदन जाके भी पढ़ ही रहे हैं, कुछ सैर सूर भी कर ले थोड़ी सी। थैंक यू भाई, मियां साहब, यू मेड माय डे, थैंक यू थैंक यू सर।